Yes, but it was good. that's great. And what insights you got by doing this assignment? Assignment I have chosen that maintenance of housing societies. Hmm. So there are like around 14 questions I have downloaded from ChatGPT, and it was good. Everybody responded well, and it's good. Like now, response was good. And so far, this Google Form file is concerned, I sent to many people, but 13 of them have responded actually because mostly professionals are there, so they are busy or relaxing or. That's great. That's But great. still, I have got around 13 responses, and that is good. 13 responses is good, and actually now this lead is ready with you. Yes, to move ahead. That's great. Great, Angad. Congratulations. Thank you, And madam. It was a great learning. This is absolutely new, and sometimes we have been wondering that how to do all these things. So yes, at least we have like just those points actually. So it is no longer a mystery or enigma for us. So it's good going. It's good going. I'm happy. yeah. Thank you so much. So you people must do the assignment. So I'm taking my full efforts that it should be. Yeah, despite It is having the fever, I business. have completed this recording of videos and just sending WhatsApp link through the WhatsApp or the Google form. So Yeah. good, madam. It's a good motivation from your side. Thank you. Thank you. And Swardhani is doing really commendable job. I'm very happy that the way she recorded the video. Yeah, she is my right hand, so I'm able to execute you people on the toes for the assignment. She really takes good care of everyone. Yeah. Thank you. That's Thank all you. from my side. So far. Yeah. Just we will listen to. Yes, Suyog. Good evening, ma'am. Yeah, very The good assignment evening. was very exhausting, but it was really good fun because, in fact, we actually, what we learned, we were able to execute. And moreover, it was a great insight because I must have shared this link with at least 1,000+ people, and I only got 32 surveys response. That's what the And learning that is. also, because I had to, chase these guys up to send me the response, and then a lot of had apprehensions regarding why do you want this, whether this is exactly, are we going to get some spam calls, and are we going to get some, any commission out of this? So those were a lot of questions and insights about it. But then I used the ChatGPT, designed the forms as per, the updates and instruction given by you. I think I've seen Swara's video twice, all both the videos, and thanks to Swara because she has actually given a lot of insights of how to create the forms and everything all about. And moreover, what happened is, mainly with now only my video recordings are pending. I think one is done, 3-4 are there for tomorrow. So I think first up I'll try and complete it all 5, and I'll update that because. So what's the learning from video recording? Video recording, it was good fun. And mainly, there was a lot of, again, reservation, and people were reluctant the moment we say, we want to record the video. And that's where actually, they were not okay with. And they're like, why do you want me and how you want to use this exactly data for? So because the professionals, those are there, from my career, they all have reservations towards it. They said, no, if you want, you can call me anything. And you ask me this question, and I'm more comfortable rather than you get me on Zoom and you record videos. So that's something. There's a lot of pushback and a lot of reluctance from those people. But then what I've done is, in fact, I convinced now other people. So tomorrow I think I should be able to finish the entire thing. So because I already got the questions from ChatGPT, and they are more in sync with what is actually expected. So I think that will work. Yeah, great. So congratulations for completing the assignment. At least was the Yeah. second is yet to done. Yeah, so Muralidhar, you have also completed and you also done the commendable job. Just share your experience. Muralidhar, are you there? Yes, Aarti, you can just start. You have also done the assignment. Aarti, you can share your experience. मैम मैं थोड़ा बाहर हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे सुनने में और बोलने में, तो मैं घर पे जाके बात करती हूँ। मैं 1-10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ओके ठीक है। हाँ, मुरलीधर जी बोलिए। Yeah, good evening, ma'am. Yeah, very good evening.
The survey part I have completed successfully. Like I have uploaded around 100 plus. I Yeah. got response from 35. 35 you got, yeah. Yeah, that I have uploaded, but videos still I have not yet done it because yesterday also I was a little tied up. So still I have not, because people not responding for coming on the video. Yeah, So this I'm just is trying what the learning is, and further going when we will plan the digital strategies, these all challenges you people are going to face. So you must face these small challenges from start itself, so that you will also understand how to overcome it. Correct, because people having reservation with coming on videos and recording it and all. Still I'm trying it, ma'am. I'll finish it off. Another couple of videos I will try to upload, and Yes, the yes. experience was good, ma'am. Yeah. The learnings and all. Yeah. Yeah. Okay, thank you so much. Anyone else? Suresh, you have also done? Yes, ma'am. Yeah, Suresh, tell me your Yeah. experience. Yeah, it was great experience, but due to some other conflicts, I was a little busy, and even I actually sent for the 15 peoples. Among that, I got response from the 13 people. So as other people are saying, like CEO and Muralidhar sir, it's like people are coming hesitating to come on the camera. So that's what was the main problem. Rest all is okay. And we understood the concept and making the segmentations with the working professionals and other sectors with different other sectors. So that was a great experience. But still, I'll try better, approaching with the people and try to make some other videos in the coming days. Yeah. Yeah, okay. Yeah, Yeah, great, great, Suresh. Thank you. Yeah, yes. Jayashree, have you done it? Jayashree, have you tried? यस मैम आई ट्राइड मैम बना भी लिया था बट मैम मेरे क्रोम में कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं मैम मैम मतलब क्रोम ही नहीं खुल रहा है मतलब वो खुल रहा है फिर रिडायरेक्ट होके वापस होम पेज पे आ जा रहा है तो कुछ अभी भर नहीं पाया हूँ मतलब Okay. अपलोड तो जयश्री थोड़ा सा ले लेना, स्वरा का हेल्प ले लेना, किधर प्रॉब्लम आ रहा है आपको, बट यू डू द असाइनमेंट, क्योंकि फिर आगे के हमारे जो कंटेंट है वही से कनेक्ट होंगे, तो डेफिनेटली यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट. मैम वो तो हो जाएगा हाँ मतलब सबमिट करने पे है यस 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 जयश्री. मीनाक्षी, किया क्या असाइनमेंट? Yes, ma'am. वेरी गुड. हाउ इज Ma'am, योर एक्सपीरियंस? it's excellent experience, ma'am. हाँ, तो कैसे क्या रहा, थोड़ा एक्सप्लेन करो. हाँ मतलब सर्वे भी करने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया और इंटरव्यू लेने में उसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया. तो कितने इंटरव्यू लिए मीनाक्षी? मैंने बस 4 इंटरव्यू लिए मैम, और वो छोटे छोटे हैं अभी, क्योंकि मैंने पहले खुद को ये किया, इंटरव्यू लेने के लिए पहले खुद को तैयार किया, और फिर आगे वाले को भी कन्विंस करना पड़ता है कि तुम इंटरव्यू दो. पहले तो वो नहीं बोलते, हिचक जाते हैं कि नहीं हमको नहीं देना, क्या बोलना है, कैसे बात करनी है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मना कर देते हैं. तो थोड़ा सा उसमें आ रहा था प्रॉब्लम. सर्वे फॉर्म तो वो फिलअप कर दिया बहुत सारे जनों ने. तो मैडम मुझे उसमें सर्वे फॉर्म में ये पता चला, मतलब लोगों का माइंडसेट पता चलता है कि कैसा है, कितने लेवल तक मतलब वो थॉट प्रोसेस उनकी चलती है, वो सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया मैम. Yes, great, Meenakshi. Yeah, Thank you. congratulations. Yes. And Tomeshwar, you did? Tomeshwar, you did? मैडम नमस्कार. हाँ, नमस्कार. मैडम मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, जस्ट अभी एक्सेल शीट रेडी हुआ था और लिंक Okay. मैंने शेयर किया है और वीडियो मैंने नहीं ले पाया मैडम, थोड़ा मेडिकल इशू आ गया था. ओके, लेकिन तोमेश्वर कंप्लीट करो ये वीक में, क्योंकि जी मैडम, जी assignment अभी पुश बिल्कुल. होते जाएंगे. जी मैडम. यस यस. नेक्स्ट अजय, आपने कंप्लीट किया? गुड इवनिंग मैम. या गुड इवनिंग. मैम मैंने कंप्लीट कर लिया था मैम, और मैंने फोनिक किया हुआ था जिसमें 2 को मैंने कन्वर्ट करने में भी कामयाब रहा. अरे वाह, एक वेरी गुड. 2500 और एक 1500 का वो SIP भी चालू कर दिया है फीमेल पर्सन. वेरी गुड. मैम वो रिकॉर्डिंग डाउनलोड नहीं हो पा रहा, जैसे मैं फोनिक रिकॉर्डिंग किया हुआ हूँ. ओके, तो वो भी थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा. टेक इश्यूज के लिए स्वरा के साथ जरा कनेक्ट हो जाइए आप. ओके मैम, तो मैं सुबह में कर दूंगा मॉर्निंग में. यस 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 यस. ओके मैम. या साविन, आपने किया?
साविन आप हो क्या? ओके, सो दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। सो असाइनमेंट अगर करते जाएंगे सब लोग तो डेफिनेटली बहुत ही वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि सेशंस ऑलरेडी जो भी हमारे प्लान हुए हैं दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आपका बिजनेस ग्रो होना चाहिए। और भावेंद्र जी यस आपके लिए भी है ये, क्योंकि ये जो आज का सेशन है और आगे के कुछ सेशन वो आप लोगों के नहीं हुए हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आपको बुलाया, तो आगे के 7 सेशन तक ये बैच के साथ अटेंड करना है आपको। सो असाइनमेंट के बारे में जो भी क्वेरीज है वो वीडियोस में आपके लॉगिन में भी डालने वाली हूँ, तो वो सारी रिजॉल्व हो जाएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Just give me a minute. Is my screen visible to all of you? Yeah, it is visible. Yeah. Visible. Yeah, so again, today is the interesting session. So all the participants from my first batch, Meenu, Bankim, Tikesh, Lalan, and who had joined, Bhavendra ji. So all of you, please connect with the session. Customer persona का जो session है, उसके आगे का ये session है. But कुछ additional assignment मैंने इन लोगों को दी थी, तो आप लोगों को भी वो ऐड करूंगी मैं आगे। सो टुडे सेशन इज अगेन द सीक्वेंसिंग। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंसिंग है इसमें हमें ऑलरेडी हमने कस्टमर पर्सोना तो देख लिया, बट वंस वी लर्न अबाउट कस्टमर पर्सोना, अभी कस्टमर पर्सोना क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें मार्केटिंग फनल पे बैठना है। मार्केटिंग फनल मतलब होता क्या है? आज के सेशन में बेसिकली इसका कनेक्शन हम लोग करेंगे customer persona and then we will basically create a marketing funnel out of it. So आज के सेशन में you will understand thorough idea about the marketing funnel कि marketing funnel exactly work कैसे होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने निश के बारे में देखा। निश सिलेक्शन के बाद एक जो हमारा निश है उसके टूवर्ड्स हमारे टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं और टारगेट ऑडियंस के टूवर्ड्स पर्सोना कैसे बिल्ड करना है। ये पर्सोना बिल्ड होने के बाद ये जो टारगेट ऑडियंस को हमने समझा, अभी इन लोगों के साथ कनेक्शन करके हमें एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, मार्केटिंग फनल कैसे बनाना है, एंड एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग फनल, इसके कौन से मॉडल्स होते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। और एडिशनली चैट जीपीटी अभी हमने नॉर्मल यूज करने को सीखा था, अभी तो और भी काफी अच्छे एक्सटेंशंस आ गए जो एक्सटेंशन को यूज करके हम और भी अच्छा चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबकी दिक्कत ये होती है कि प्रॉम्प्ट कैसे डालना है, क्या पूछना है चैट जीपीटी को। तो ये जो आपके जो चैलेंजेस होते हैं दोज विल गेट एलिमिनेटेड विद दिस एक्सटेंशंस। तो आज हम लोग वो भी सीखने वाले हैं। आपको मैं 2 से 3 एक्सटेंशन सिखाने वाली हूँ। सॉरी, एक्सटेंशन एक ही होगा, बट वहां पे जो प्रॉम्प्ट है वो हम लोग कस्टमर पर्सोना के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी कस्टमर पर्सोना हम लोग नॉर्मल चैट जीपीटी से कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने लास्ट सेशन में देखा था। ये सेशन में हम लोग कुछ एक्सटेंशंस रेडीमेड यूज करके ये कस्टमर पर्सोना कैसे बनता है और ये कस्टमर पर्सोना के टूवर्ड्स हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग फनल स्ट्रैटेजी कैसी बनती है। और मार्केटिंग फनल के लिए जो भी स्टेजेस होते हैं, जो भी फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये फेजेस को हम लोग मार्केटिंग के वर्ड्स में क्या बोलते हैं, और ये फेजेस को अगर हमें टैप करना है तो अगेन हाउ चैट जीपीटी कैन हेल्प अस। सो अगेन we will check the case studies और कुछ लाइव केस स्टडीज भी लूंगी। परमित, यू हैड रिक्वेस्टेड मी कि कुछ केस स्टडीज ले लो। लास्ट लेक्चर में आप नहीं थे तो मैंने एक अलग निश की भी केस स्टडी ली थी। टुडे आई विल टेक केस स्टडी फ्रॉम यू एंड एक लाइव में भी हम लोग क्रिएट करके देखेंगे कि वो केस स्टडी से हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग। एंड परमित, आर यू एबल टू वॉच द सेशन एंड डू द असाइनमेंट? हैव यू प्रोसीड, मतलब कुछ किया आपने? परमित, आर यू देयर?
यस मैम। हाँ परमित, आपने अपने सेशन देखा क्या लास्ट टाइम का? मैम यस, मैंने देखा। ओके, तो कुछ स्टार्ट किया क्या उसके असाइनमेंट का? मैंने जो गूगल फॉर्म था वो मैंने कंप्लीट किया, हम्म। और ऑलमोस्ट मैम 16 to 17 रिस्पॉन्स मिले मुझे टिल डेट। ओके। बिकॉज ड्यू टू हेल्थ रीजंस मैंने थोड़ा लेट हम्म। स्टार्ट किया था, तो मैंने संडे आफ्टरनून में कंप्लीट किया। तो हम्म। कल और आज इवनिंग तक मैंने 17 रिस्पॉन्स मिले मुझे। ओके ग्रेट। और यस, और और अभी इंटरव्यू का बाकी है आपका ना? इंटरव्यू, यस मैम, वो भी मैंने लाइक नहीं स्टार्ट किया। यस, सो उसमें मैंने अलग भी दे दी थी, आज एक सोच के रखो, वो भी हम लोग आज क्रिएट करेंगे तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। मैम तो हाँ, डाउट मैम, केस स्टडी का कह रहे हैं आप? केस स्टडी में आपने बताया था ना कि म्यूचुअल फंड एडवाइजर का आप ले रहे हो, तो थोड़ा अलग एग्जांपल दे दो। तो मैंने लास्ट टाइम योगा का नीश एक पकड़ा था, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 70%। नो मैम, मैंने ऐसा नहीं था। मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रहा था, मैं अपना बिजनेस वाला जो है वो फॉलो कर रहा था, बट वो मुझे लगा कि मे बी वो रीजन था। अदरवाइज ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने अब म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जो करा है हाँ फॉर्म, हाँ वो भी म्यूचुअल फंड को ही कंसिडर करके किया है, तो उसमें मुझे बेटर लग रहा है, तो मैं उसी को ही कंटिन्यू करूंगा। हाँ, तो फिर ठीक है, मतलब वही वो आपने थोड़ा फीडबैक में डाला था करके मैंने थोड़ा सा ऐड किया था वहाँ पे। यस 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 यस, थैंक यू सो मच मैम। या ओके। सो अभी आज ना आपको बहुत अगेन इंटरेस्टिंग, क्योंकि और थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, मतलब आपको क्या पूछना है ये सोचना पड़ रहा था। अभी चैट जीपीटी के एक्सटेंशन हम लोग ऐसे यूज करेंगे एआई को, कि ये एआई टूल को यूज करके और भी आपका काम आसान हो जाएगा। फर्स्ट वाली जो बैच थी तभी चैट जीपीटी आया नहीं था, एंड देयरफॉर ये सारी इतनी फैसिलिटीज नहीं मिली थी। तो लेकिन चैट जीपीटी से जो हमें बहुत इजी काम हमारा हो गया, अंडरस्टैंडिंग और आपका इम्प्लीमेंटेशन फास्ट तरीके से जा रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं था विदाउट चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी को हम लोग आज और अच्छी तरीके से यूज करेंगे, एंड एडवांस जो एक्सटेंशंस है वो भी हम लोग कुछ एड ऑन सीखेंगे और मैम स्टेप एक्सक्यूज स्टेप। मी यस। मैम, वन थिंग इज मोर मैम, जैसे मैंने अभी वो फॉर्म करा, रिस्पॉन्स आया मेरे को, तो उसमें मैम मुझे लीड भी मिला। ओके। बट बिकॉज मैंने अभी ये एआरएन कंप्लीट नहीं किया है। मैम वैसे म्यूचुअल फंड भी नहीं लाइक किया, तो मुझे ये नहीं उसके समझ आ रहा पूजा था। से करवा लो ना उसका, यस यस, अभी पूजा ऐसे ही कटियाल, करो। वही मैं सोच रहा था हाँ, मैम, पूजा ऐसे ही से कर लो, क्योंकि आपका होने तक टाइम लगेगा, कस्टमर चला जाएगा। एग्जैक्टली, राइट हाँ, राइट राइट। तो वैसा ही करो कुछ आप। ओके मैम, ओके ओके, यस, इस पर में थी। प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू। या सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगेन टुडे सेशन इज अगेन द इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट सेशन, क्योंकि आज पूरे फनल बिल्डिंग में जाने वाले हम लोग। कस्टमर पर्सोना, एक तो कुछ जो स्ट्रेटेजीज है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक सक्सेसफुल फनल कैसे बनता है। एक तो चीज ऑलरेडी हमने कस्टमर पर्सोना बनाया, मैंने कुछ असाइनमेंट दी आप लोगों को और आपने वो असाइनमेंट की और उसका रिजल्ट आपके सामने है। 2 लोगों के ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट हो गए, क्योंकि सीरियसली जो असाइनमेंट करेंगे डेफिनेटली उनको रिजल्ट आने ही वाले हैं। तो आपने तो अभी तो फिजिकली किया है, अभी तो हम लोग डिजिटल स्ट्रेटेजी लगा ही नहीं रहे हैं। फिजिकल मार्केट में जो भी टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं वो हमें वर्क ऑलरेडी, मतलब हमारा रिजल्ट दे रहा है और आगे लेके जा रहा है। तो वैसे ही आप लोगों को ये समझना है कि एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अगर अच्छे से करना है तो सबसे पहली बात है निश। निश के नीचे हमने बहुत सारा डिग किया है कि उसका निश एक एक कैटेगरी ऑलरेडी काफी सारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, तो आपका एक्चुअली निश सिलेक्टेड है। वो निश का फिर आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, तो यहाँ पे भी हमने बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है कि ये जो मेरा टारगेट ऑडियंस है उसको सेगमेंट में भी डिवाइड कर दिया है। और ये जो सेगमेंट वाले हैं, हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट का हम लोग कस्टमर पर्सोना कैसे बनाते हैं, और कस्टमर पर्सोना को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने मेथड सीखी थी। इसमें से 2 मेथड्स हमने यूज की थी। 2 मेथड्स में फर्स्ट मेथड था कि सर्वे मेथड। तो अभी आपका अंडरस्टैंडिंग मार्केट का बहुत अच्छे से बढ़ रहा है कि मेरा कस्टमर एग्जैक्टली है क्या, क्या चाहता है मुझसे, उसको क्या दिक्कतें हैं। सो क्लोजली यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग कि ये मेरा जो कस्टमर है वो एग्जैक्टली कैसे जाएगा, उसका जर्नी कैसे होगा, एंड आपको विजुअलाइजेशन मिल रहा है। सेकेंड जो वे है कस्टमर पर्सोना डिफाइन करने के लिए, दैट इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर, टॉक टू द कस्टमर। तो आप जब कस्टमर के साथ बात करते हो
तो अगेन उसके क्वेश्चनर्स वगैरह सब चैट जीपीटी हमें दे देता है, और ये भी हमने बहुत अच्छे से किया, तो तभी आपको समझा होगा कि लोग कैसे हेजिटेट करते हैं, किधर प्रॉब्लम आता है, किधर चैलेंजेस, एंड एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। तो ये अगर हम लोग अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कस्टमर पर्सोना तो हमने एक्सप्लोर कर लिया। अभी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है कि ये कस्टमर पर्सोना को हमें कन्वर्जन तक लेके जाना है। यही देखो कि आप अगर सही तरीका मार्केटिंग का यूज करते हो तो यू गेट द राइट रिजल्ट, बट राइट एक्शंस विल टेक यू टुवर्ड्स द राइट रिजल्ट। इफ यू आर कीप ऑन डूइंग द रॉन्ग एक्शंस, then no one can give you the results. So basically यहाँ पे ही सब लोग मिस आउट करते हैं। स्टार्ट से लेके एंड तक हमें मार्केटिंग को इतना इंपॉर्टेंस देना है कि इतनी हमें स्मूथली स्ट्रैटेजी और एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स द कस्टमर क्यूरेट करनी पड़ती है कि दैट ड्राइव्स द रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट हमें आते हैं इसमें बेसिकली पैरामीटर्स क्या है। अभी तो पहला पैरामीटर हमने कस्टमर को अच्छे से समझा, हमारे नीच के टूवर्ड्स, एंड देयरफॉर 2 people हैव गॉट डायरेक्टली द रिजल्ट्स, और उनका तो कन्वर्जन तक अभी पहुंच गए। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं कि हमने जो कस्टमर पर्सोना अभी बनाया, ये पर्सन को अभी हमें कन्वर्जन तक कैसे लेके जाना है। सो टोटल कस्टमर पर्सोना की जो जर्नी हमने एस्टैब्लिश की थी, वो मार्केटिंग फनल की जर्नी हम लोग कैसे करेंगे। And therefore it is very important to understand कि ये मार्केटिंग फनल की जर्नी हमारी कैसे होगी और हम लोग बेसिकली इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है। जब हम लोग बात करते हैं कि पैरामीटर क्या है, हमें एक तो एज अ मार्केटर कब हमें एक्चुअली रिजल्ट्स मिलेंगे। हम लोग को सेल्स चाहिए, लेकिन हम लोग जो विवेक बात करते हैं ना, मुझे कस्टमर चाहिए, कस्टमर चाहिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ कस्टमर्स रियली यू वांट? हैव यू डिसाइडेड योर क्रिस्टल क्लियर गोल? स्टार्ट से लेके अभी तक मैं ना क्रिस्टल क्लियर गोल्स की बात करते आई हूँ। आपको क्या हासिल करना है उसके लिए आप क्रिस्टल क्लियर गोल सेट करो और वो गोल के टुवर्ड्स एक्शन ले लो। सो particularly defining the targets is very very important. crystal clear goal तभी होंगे जब आप टारगेट सेट करोगे। टारगेट ही अगर सेट नहीं है तो वो गोल बस चलता रहेगा, मुझे करना है करना है करना है, एंड दैट बेसिकली इट डजंट एक्चुअली यू कैन नॉट अचीव दैट गोल। और क्यों नहीं? क्योंकि उसके एक्शनेबल से डिफाइन नहीं है। गोल ही क्लियर नहीं है तो एक्शन क्या लेंगे, वो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? और टाइम फ्रेम भी नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? मैंने बोला था आपको 3 दिन का टाइम है तो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। मैंने अगर आपको टाइम फ्रेम ही नहीं दिया होता था, आपके मन से करो, कोई पूछने वाला नहीं है, डू यू थिंक यू पीपल हैव डन द असाइनमेंट? इज इट पॉसिबल कि मैंने पुश नहीं किया, बोल दिया ये असाइनमेंट करो, और फिर पुश नहीं किया, तो फिर क्या आप लोग करते थे असाइनमेंट? नो, दैट इज द ह्यूमन टेंडेंसी। सो यू नीड टू रियलाइज कि आपको जैसे मैं दे रही हूँ पुश, वैसे आपके कस्टमर को आपको देना है, और उसको बोलना है टाइम बाउंड में कि बाबा इतना ही टाइम है आपके पास, इसमें ही आपको आना है हमारे पास, अदरवाइज नहीं वर्क होता है। एंड देयरफॉर पुश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर ह्यूमन बींग्स। स्टार्ट से लेके अभी तक मैं वही बोलते आ रही हूँ। तो कस्टमर पर्सोना मैटर्स अ लॉट, इट इज द हार्ट ऑफ योर मार्केटिंग फनल। बट टिल द टाइम यू डू नॉट अंडरस्टैंड निश नहीं समझोगे, फिर उसके टारगेट ऑडियंस नहीं समझोगे, उसका सेगमेंटेशन नहीं समझोगे, तब तक अच्छा कस्टमर पर्सोना नहीं बन सकता। और जब तक अच्छा कस्टमर पर्सोना, राइट नॉट अच्छा, राइट कस्टमर पर्सोना नहीं बनता है आपके निश के टुवर्ड्स, तब तक आप उसका मार्केटिंग फनल स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। और मार्केटिंग फनल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें क्या लगता है, व्हाट वी नीड क्रिस्टल क्लियर गोल्स, कि हम लोग कस्टमर तक के पास कैसे पहुंचेंगे, क्या हमारा टारगेट है, व्हाट वी वांट टू अचीव, और कितने टाइम में हमें अचीव करना है। ये अगर 3 सारी स्टेप्स हमें पता है तो फिर उसके एक्शंस में क्या लूंगा वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ। बट ये अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है, देन हाउ आई कैन डिफाइन द एक्शंस? तो फिर मैं एक्शन डिफाइन नहीं कर सकती। सो इट इज वेरी 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 important to define the crystal clear actions। बहुत मायने रखते हैं इसके लिए एक्शंस। रिजल्ट्स क्या आएंगे, टाइम मैनेजमेंट में कैसे करूंगा? आई नो यू आर इन हेक्टिक,
बट टिल द टाइम आपको खुद को जब तक इंश्योर नहीं करते हो कि मैं ये काम करूंगा, ये आपकी खुद की कमिटमेंट खुद से नहीं करते हो ना, तब तक ये नहीं होगा। एंड देयरफॉर यू नीड टू कंप्लीट इट। सो आज का टॉपिक हम लोग मार्केटिंग फनल पे लेके जाएंगे। सो फर्स्ट, मार्केटिंग फनल क्यों बनाना है? कन्वर्जेंस अगर चाहिए, सो वी डिफाइन द पर्सोना, बट मार्केटिंग फनल को, फनल मतलब ये जो कस्टमर बनाया हमने, कस्टमर का पर्सोना बनाया, अभी उसको हमें लेके जाना है अलग अलग फेजेस से मार्केटिंग के। और ये कितने फेजेस होते हैं उसका भी मार्केटिंग मॉडल होता है। एंड दैट मॉडल आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न, विच इज नोन एज मार्केटिंग फनल मॉडल। और आइडा मॉडल इज वेरी वेरी पॉपुलर इन मार्केटिंग फनल। तो हम लोग कोई भी जब बुक्स देखते हैं मार्केटिंग की, तब आइडा मॉडल पहले आ जाता है कि आप समझो कस्टमर की जर्नी को समझो और फिर डिसाइड करो कि ये स्टेजेस ऑफ फनल होते हैं, वो स्टेजेस ऑफ फनल से आपको आपके कस्टमर को कैसे लेके जाना है। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सीरियसली क्या करने चाहिए। तो ये जो मैं दे रही हूँ नोट्स, वो 2 बार मिनिमम रीड करने चाहिए। इफ यू विल नॉट रीड इट ट्वाइस, तो वापस सर के ऊपर से जाएगा आधे लोगों की। लेकिन अगर आप रीड करके देखो, जो भी मैं बोल रही हूँ वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, आपका बिजनेस, आपने जो इन्वेस्ट किया है ना पैसा, उसका 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप कोर्स एंड होते होते ही ऑलरेडी कमा लोगे। बट वो राइट एक्शंस भी तो होनी चाहिए, अदरवाइज आई एम नॉट अ गॉड कि चलो अभी सिखा दिया तो सबको बिजनेस आ जाएगा। हार्ड वर्क इज अटैच विथ एवरी सक्सेस। सो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों का मिक्सचर हमें करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करने के लिए चैट जीपीटी इज देयर, हार्ड वर्क यू पीपल हैव टू डू, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सो हम लोग अभी देखेंगे कि मार्केटिंग फनल कैसे बनाते हैं, कस्टमर पर्सोना क्यों है, ऑलरेडी लास्ट सेशन में हमने किया था। लेकिन कस्टमर पर्सोना क्यों हमें चाहिए? क्योंकि हम लोग दुनिया भर को अगर स्टोरी मेरा बोलेंगे ना, मेरे प्रोडक्ट का, मेरे निश का, नो वन इज इंटरेस्टेड। सेकेंड, दुनिया भर को अगर मुझे बोलना है, ब्रांडिंग करनी है, तो उतना पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा सारी दुनिया तक पहुंचने के लिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दुनिया, मुझे तो बस मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, आई एम कंसर्न विद दैट पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस। एंड देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस। और वो जब टारगेट ऑडियंस हम लोग कैप्चर करते हैं, तभी हमारा बजट भी रिड्यूस हो जाता है, कम पैसे में हमें रिजल्ट्स भी ज्यादा आते हैं। भले वो फिजिकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो या आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो, एवरी टाइम यू शुड डीपली डाइव इनटू द मार्केटिंग फनल। और मार्केटिंग फनल एक अच्छा क्रिएट करने के लिए आपका कस्टमर पर्सोना पहले रेडी होना चाहिए। एंड देयरफॉर वंस वी डिफाइन द कस्टमर पर्सोना, ऑलरेडी आपको पता है कि कस्टमर पर्सोना करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, एक्यूरेट पर्सोनाज। और इसमें हमने ये जो 2 टेक्निक है, ये आपने ऑलरेडी सीखी, सर्वेज एंड इंटरव्यूज। और कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, you have not disappointed me and maximum people have done the assignment. Congratulations to you. तो surveys और interviews, और congratulations to 2 of our members who cracked the deal and got the SIP. So congratulations to you. अभी ये जो next है, देखो कि social media listening and analyzing existing customer data, ये जो 2 है, ये हम लोग आगे करेंगे। तो अभी हमने 2 फेजेस कस्टमर पर्सोना की है, लेकिन ये डिजिटाइजेशन के लिए है। फिजिकल से जो हो सकता था वो हमने किया, डिजिटल से जब आप सोशल मीडिया सीखोगे तो लिसनिंग कैसी करनी है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करना है, वो अलग अलग स्टोरी है। और वो हमारा सोशल मीडिया चालू होगा तभी होगा। और एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर डेटा, ये वेबसाइट से जो डेटा आता है, डेटा एनालिटिक्स के जो टूल होते हैं, वो आगे के मॉड्यूल में हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमारे कस्टमर पर्सोना में से ये 2 मेथड्स आपके पेंडिंग रहेंगे, डोंट थिंक अबाउट इट। आगे जब हम लोग सीखेंगे तभी आप ये कर पाओगे। लेकिन ये 2 मेथड्स आपको भी अच्छे से पता है, और फिजिकल मार्केट के लिए अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। डोंट स्टॉप इट, कंटिन्यू इट एंड जस्ट ट्राई टू। आज के सेशन के बाद सब लोगों को मुझे ये चाहिए
कि आप ये 1 मंथ का टारगेट अभी से लेना स्टार्ट करो, इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजीज एंड गेट द रिजल्ट्स। तो जो लोग रिजल्ट ला सकते हैं, सीखते सीखते ला सकते हैं, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन फॉर यू कि आप लोग इतना सारा कर रहे हो। So utilizing customer insights to refine personas and align with the target audience. तो हमें क्या करना पड़ता है, तो ये जो insights आई आपको, उसके ऊपर से अभी मुझे मार्केटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रैटेजी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर आप आपके कस्टमर पर्सोना को आपके टारगेट ऑडियंस के साथ, टारगेट मार्केट के साथ मैप कर सकते हो। तो ये लोकेशन वाइज भी मैपिंग हो सकता है, कल्चर वाइज भी हो सकता है, एज ग्रुप वाइज भी हो सकता है, नीड वाइज भी हो सकता है। देखो हर एक जगह पे सेगमेंट है। देयर इज अ सेगमेंट इन डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर नीड्स, देयर इज अ सेगमेंट डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर एज, देयर इज अ सेगमेंट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। सो कितना डीपली डाइव करोगे उतना आप आपके कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा करोगे। एंड वंस यू अंडरस्टैंड, देखो एक पर्सन जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है, फ्रीक्वेंसी मैच होती है, फ्रेंड बनता है, क्यों? बिकॉज ये पर्सन के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। जितना अच्छे से फ्रेंड को समझते हो, इसके लिए शेयर कर पाते हैं कि, और हमारे फ्रेंड्स हमें बोलते हैं कि यस, अरे तुम्हें तो समझ ही आ जाता है मुझे क्या कहना है और मेरे प्रॉब्लम्स। सेम चीज आपके कस्टमर के साथ होनी चाहिए। ये जब होगा तो आपके कस्टमर आपके फ्रेंड्स बनेंगे और ऑटोमेटिकली इतना आप नर्चर करोगे आपके कस्टमर को कि वो नर्चरिंग में बिजनेस सेल्स ये वर्ड नहीं आएगा, वैल्यू एडिशन ये वर्ड ओवरराइड हो जाएगा। एंड यू आर ऑल द टाइम प्रोवाइडिंग वैल्यू टू योर कस्टमर। So whenever you are defining the marketing funnel, from the beginning of funnel, how you can add that 100% value to the satisfaction level, that is your responsibility. आप कैसे वो वैल्यू उनको ऐड कर सकते हो, and that basically this marketing funnel will drive you. So अभी हम लोग एक टूल सीखने वाले। अभी ऑलरेडी हमने नॉर्मल पर्सोना पहली वाली बैच के जो अटेंडीज है उन्होंने भी देखा था, और आप लोगों ने भी लास्ट टाइम मेरे साथ किया नॉर्मल चैट जीपीटी यूज करके कस्टमर पर्सोना कैसे बिल्ड करना है। बट नाउ आई विल टीच यू वन मोर टूल, जहां पे हम लोग पहले देखेंगे कि यही कस्टमर पर्सोना जो हमने क्वेश्चन टाइप करके बनाया था चैट जीपीटी से, अभी आपको रेडीमेड कैसे मिलेगा एक 1 लाइन सेंटेंस में। तो जस्ट यू नीड टू डिफाइन योर निश एंड योर पर्सोना विल बी रेडी। So how it is possible? तो let's understand। तो अभी मैंने ना मेरा रिमूव कर दिया है, वापस एकदम स्टार्ट से जा रही हूँ मैं। ये मेरा चैट जीपीटी ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है, सबको पता है। मैंने यहाँ से सबको टाइप करके कस्टमर प्रॉम्प्ट कैसे देने हैं और अकॉर्डिंगली ये प्रॉम्प्ट यूज करके आपको पर्सोना कैसे बनाना है ये बताया था। Now I am going to teach you one more extension. एक्सटेंशन मतलब क्या होते हैं? ये गूगल एक्सटेंशन जो होते हैं ये एड ऑन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एआई के एक्सटेंशंस है, ये चैट जीपीटी का। और एक जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट मतलब जो सेंटेंस हम लोग लिखते हैं वो बहुत मायने रखता है। अगर वो सही तरीके से आपने नहीं पूछा तो सही तरीके का आंसर नहीं आएगा। आफ्टर ऑल इट इज अ मशीन, इट इज अ एआई, इट इज नॉट ह्यूमन बीइंग। राइट तरीके से पूछोगे यू विल गेट द राइट रिजल्ट्स, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सो टू गेट द राइट रिजल्ट ऑलरेडी एक्सटेंशंस ऐसे एप्लीकेशंस बना के रखे। अगेन देयर आर फ्री वर्जन्स एंड पेड वर्जन्स। फिलहाल हम लोग फ्री वर्जन में जितना मिलता है उतने से हम लोग काम चला लेंगे, एंड आई थिंक अभी ये स्टेज में आपको उतना इनफ है। So now let's understand which extension we are going to add in our Google Chrome. Have you understood the meaning of extension? सबको थोड़ा सा नया लगेगा, but extension एक additional software होता है जो Google के ब्राउजर में हम लोग एक फैसिलिटी के लिए ऐड कर सकते हैं। This is the icon of extension. And as you click on the extension, जितने भी extension आप Google में ऐड कर रहे हो ये सारे आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर आपको कोई एक्सटेंशन रिमूव करना है तो यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हो।
वापस अगर ऐड करना है तो मैनेज करके भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो गूगल में सर्च करके ऐड कर सकते हो। ये कुछ ना कुछ एडिशनल फैसिलिटीज देते हैं। ऐसे काफी सारे एक्सटेंशन अपकमिंग सेशंस में हम लोग यूज करने वाले हैं। सो प्रॉपरली सबको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है और आपको आपके चैट जीपीटी में अभी ये एक्सटेंशन भी ऐड करना है। सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, क्योंकि आगे हम लोग वैसे चलेंगे। पहले आपको मैं चैट जीपीटी से फैमिलियर करवाना चाहती थी, एंड नाउ यू विल गेट फैमिलियर विद द एक्सटेंशंस। तो ये जो एक्सटेंशन है इसका नाम है AIPRM और चैट जीपीटी फॉर चैट जीपीटी। ये भी अगर टाइप करोगे तो भी चलेगा। AIPRM फॉर चैट जीपीटी फ्रॉम वेब स्टोर, वो भी आप लोग टाइप कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग वेब स्टोर में गए और देखो चैट जीपीटी का एक्सटेंशन का डायरेक्ट लिंक मिला। कभी डायरेक्ट नहीं मिलता है तो AIPRM एक्सटेंशन इतना ही टाइप करोगे तो भी एक्सटेंशन, इतना भी टाइप करोगे तो भी आपको ये लिंक आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी के लिए ये ऑटोमेटिकली क्रोम के वेब स्टोर में जाएगा और एक्सटेंशन में लेके जाएगा। Is that clear to you? Just give me clear in chat box. Have you understood, all of you? And I need everyone's response in a second. Be alert and respond fast. Yes. So this is very, very important to understand कि अभी हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो simply what you have to do, you are able to see here one button. जिन्होंने respond नहीं किया, I want to see responses. मुझे पता चलना चाहिए कितने लोग सुन रहे हैं। हाँ, नहीं तो फिर वीडियो ऑन की पॉलिसी में करूंगी फिर। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन ऐड टू क्रोम। वेरी सिंपल, कोई भी एक्सटेंशन अगर ऐड करना है आपको तो आपको वो एक्सटेंशन सर्च करना है। ये एप्लीकेशन ऑलरेडी होता है। हियर यू कैन सी कि कितने सारे यूजर्स हैं। सिंपली वी विल क्लिक ऑन ऐड टू क्रोम। अभी हम लोग ऐड टू क्रोम करेंगे तभी ये डायलॉग बॉक्स आएगा। सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन ऐड एक्सटेंशन। As you will click, automatically ChatGPT में ये जाएगा और एक विंडो आ जाएगी। Connect OpenAI and AIPRM accounts। अभी मुझे OpenAI मतलब हमारा ChatGPT का AI, ये AIPRM ये जो नया एक्सटेंशन है उसके साथ लिंक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यस कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और बस कनेक्ट विथ OpenAI अकाउंट, ये एक्सटेंशन को हमें OpenAI अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है। जस्ट क्लिक ऑन दिस। जैसे ही हम लोग OpenAI के साथ क्लिक करेंगे और अगेन एज वी विल रिफ्रेश, यहाँ पे देख सकते हो ये ऑप्शंस आ गए आपको। देखो ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे तो देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस। Now let's understand what do you mean by AIPRM. AIPRM क्या है? AIPRM एक रेडीमेड टूल है जहां पे रेडी करके एक्सटेंशन और प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी रखे हैं। आपको ये दिक्कत होती है कि मुझे क्या पूछना चाहिए, तो अलग अलग जो पूछना पड़ता है हमें वो पर्सपेक्टिव से बहुत सारे कैटेगरी के इंडस्ट्रीज के प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे देके रखे हैं, ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हैं। और इतना ही नहीं, चैट जीपीटी को हम लोग जो बोल सकते हैं कि इमोशनल टोन में लिखो, एग्रेसिव टोन में लिखो, डोमिनेटिंग टोन में लिखो, स्मूथ वर्ड्स में लिखो और पोएटिक फॉर्म में लिखो, व्हाटएवर यू वांट टू से। यहाँ पे सबके लिए प्रॉम्प्ट्स है, लेकिन जो भी इमोशनल कनेक्ट के जो भी प्रॉम्प्ट्स है ये बोलने के लिए आपको एक्चुअली पेड वर्जन लेना पड़ता है, बट नो नीड ऑफ पेड वर्जन। हम लोग मैन्युअली भी टाइप करके ये सारी चीजें उसको बता सकते हैं। लेकिन ऐसे काफी सारे अराउंड 3000 प्लस प्रॉम्प्ट्स हैं जिसका यूज आप कर सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैं जितने बोलती हूँ उतने प्रॉम्प्ट्स का हम लोग अभी पहले स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे। आपकी जितने भी सारे काम है बिजनेस के लिए, आप AIPRM का यूज करके आराम से ये सारी डायरेक्ट प्रॉम्प्ट जो होते हैं वो, और कुछ चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स मैं आगे जाके देने वाली हूँ आपको, उसकी बंच ही दूंगी। अभी मैं इसके लिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी लर्निंग फेज है। वो देने के बाद ऐसे ही कुछ ना कुछ टाइप करके कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दिख करके मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हो, एंड देयरफॉर आई विल गिव यू एट लैटर स्टेज।
everyone will get list of number of prompts. एक 5,000 प्रॉम्प्ट्स का बंडल मैं क्रिएट कर रही हूँ अलग अलग एरियाज में. डिजिटल मार्केटिंग में तो काम आएगा, बाकी पर्सपेक्टिव से भी आपको काम आएगा बिजनेस में. एंड देयरफॉर आई एम गोइंग टू गिव यू दैट आल्सो एज अ बोनस, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. सो AI PRM का चैट जीपीटी देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, सारे एरियाज है. आपको क्या चाहिए, आपको किस में करना है, आपको SEO में करना है, आपको जनरेटिव AI में करना है, आपको मार्केटिंग में करना है, आपको प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड कुछ बोलना है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो. जरूरी नहीं कि आप सिलेक्ट करो. एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग के रिलेटेड है, बैकएंड के रिलेटेड है, देखो डिजाइन्स के रिलेटेड है, आइडिएशन के रिलेटेड है, कीवर्ड्स के रिलेटेड है, लिंक बिल्डिंग के रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है. बहुत यूजफुल, वेरी 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 यूजफुल. इजंट इट इंटरेस्टिंग. तो आप लोग एक्चुअली डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो. और यहाँ पे लोगों ने ऑलरेडी यूज किया है, उसके हिसाब से अगर कुछ अच्छे एक्सटेंशंस आप देखना चाहते हो, डिग करना चाहते हो, then here you can basically sort it by top views, top votes, latest updates, जो भी आपको सिंक्रोनाइज करने को मिलता है. और अभी तो हम लोग चैट जीपीटी 3.5 टर्बो मॉडल यूज कर रहे हैं, तो अभी मैं स्पेसिफिक मॉडल कुछ नहीं देने वाली हूँ. हम लोग एक फ्री मॉडल यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी 3.5 टर्बो. सो जब चैट जीपीटी 4 अगर आप पेड मॉडल लेते हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसको यूज करके वो एडवांस AI को जनरेट यूज करके ये रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा. और देखो कि प्रॉम्प्ट्स पर पेज कितने होंगे, अकॉर्डिंगली कितने होंगे, तो 12 प्रॉम्प्ट्स 20 तक हम लोग जा सकते हैं. और देखो कितने, अभी यहाँ पे देखो कि कितने प्रॉम्प्ट्स है यहाँ पे ऑलरेडी इसने दिए हुए रेडीमेड, 3697 प्रॉम्प्ट्स. यहाँ पे सारे प्रॉम्प्ट्स अगर हम लोग ऐसे ही देखेंगे, मिड जर्नी क्या होता है वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ. इट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा कुछ पेड है, लेकिन आगे जाके जब बिजनेस सेट हो जाएगा तो कुछ टूल्स पेड वाले ले लो, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा. ह्यूमन रिटर्न यूनिक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल, अभी जो ओल्ड बैच के ऑलरेडी उनका SEO चल रहा है, और आपको AI PRM इसके लिए भी यूज करना है. इसके लिए मैं सेपरेट सेशन करने वाली हूँ. सो SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स भी आप लिख सकते हो. ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको करना है आर्टिकल्स, लेकिन ये हम लोग भी आगे जाके कुछ प्रॉम्प्ट भी यूज करेंगे. सो यहाँ पे देखो बायर पर्सोना लेजेंड, ये आज का हमारा मेन टूल है. तो बहुत सारे हैं, आप डायरेक्टली जा सकते हो और ये सारे यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिखाई देंगे. लेकिन अभी मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगी, यहाँ पे सिर्फ लिखूंगी बायर पर्सोना और करूंगी सर्च. बाकी कुछ भी मैंने सिलेक्ट नहीं किया. सो एज आई क्लिक ऑन बायर पर्सोना, देखो बायर पर्सोना के जितने हैं ना उतने, और आपको चाहिए तो अलग अलग पर्सोनास कैसे क्रिएट होते हैं, ये टेबल फॉर्मेट में चाहिए आपको, और कैसा इंस्टाग्राम का बायर पर्सोना चाहिए. देखो इट इज जस्ट n नंबर ऑफ ऑप्शंस, कैन यू इमेजिन. बट मुझे जो सबसे बेस्ट अच्छा लगा, दैट इज अ वेरी गुड वन, इज बायर पर्सोना लेजेंड. तो आप ये यूज करो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आपको कुछ भी यूज कर सकते हो. यहाँ पे हम लोग ये पर्सोना को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी प्रॉम्प्ट को, और फिर यहाँ पे देखो लिखेंगे. यहाँ पे भी आउटपुट आपको कौन से लैंग्वेज में चाहिए, यहाँ पे जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में आप आउटपुट ले सकते हो. बंकिम जी, आपको प्रॉब्लम था ना कि हिंदी में चाहिए या गुजराती में चाहिए, यहाँ से आप ये ले सकते हो. देन टोन में अभी हमें एक ही टोन मिल जाता है, इमोशनल, और कुछ नहीं, आप डिफॉल्ट ही रखो. अगर टोन चेंज करना है तो मैन्युअली हम लोग बताएंगे ये टोन में करो, क्योंकि यहाँ पे बाकी के जो टोन है वो पेड है. राइटिंग स्टाइल में भी एक पोएटिक दिख रही है और कुछ नहीं, तो राइटिंग स्टाइल जो होते हैं अलग अलग, वो भी हम मैन्युअली दे सकते हैं. तो यहाँ पे अभी और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. नाउ सी हियर बायर पर्सोना लेजेंड, व्हाट आई एम डूइंग. मुझे अभी बायर पर्सोना बनाना है म्यूचुअल फंड एडवाइजर का, उसके रिलेटेड रिटायरमेंट प्लानिंग के रिलेटेड मुझे बनाना है. तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ. जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे देखोगे कि बायर पर्सोना लेजेंड उसने सिलेक्ट कर लिया, और ऑलरेडी ये डिटेल पर्सोना जनरेट करेगा, और ऑलरेडी नीटली ऑर्गेनाइज डेटा भी तैयार करके देगा. पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी जानना है, मार्केट रिसर्च, पूरा आपके सामने आ जाएगा. सो व्हाट प्रॉम्प्ट आई विल गिव बाय बायर पर्सोना लेजेंड.
create buyer persona for mutual fund advisor to give services for retirement planning in the age group 30 to 50. Yes, have you understood? Prompt दे दिया मैंने. अभी बस ये खुद बनाएगा सब. एक ही लाइन लिखी बस. Just see the wonder. ये देखो उसने खुद ब्रांड जनरेट किया. यूजर यहाँ पे देखो. यूजर पर्सोना क्रिएट बायर पर्सोना फॉर टू गेट द 32. और अभी टेबल देखो यहाँ पे पहले टेबल 1 में उसने क्या दिया, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, मैरिटल स्टेटस, 2 चिल्ड्रंस. उसने एक केस स्टडी बना दी. यूजर डिस्क्रिप्शन, जॉन स्मिथ इज अ 42-year-old मैरिड मार्केटिंग मैनेजर विद एन एनुअल इनकम ऑफ दिस. फिर साइकोग्राफिक्स हो, साइकोग्राफिक्स में फिर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है. इजंट इट वंडरफुल? इट्स अ मैजिक. सो पर्सनल एस्पिरेशंस कितना सोचोगे, ये पूरा दे दिया उसने. पेन्स क्या है, फियर ऑफ इनएडिक्वेट रिटायरमेंट सेविंग, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, मार्केट वोलाटिलिटी, मेन चैलेंजेस, बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नीड्स, रिलायबल रिटायरमेंट प्लानिंग. फिर उसके शॉपिंग बिहेवियर. ये शॉपिंग बिहेवियर हमें आगे यूज में आने वाले हैं जब हम लोग बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे. When we will learn the social media marketing, ये 4 टेबल आपको, और अभी 2 जो हमने पेंडिंग रखी है कस्टमर पर्सोना की, ये यहाँ पे आ गई. ऑलरेडी मार्केट रिसर्च करके कैसे ड्राइव करना है, कैसे हमारे अच्छे फनल्स बनाने हैं, each and everything we will learn here. So shopping behavior, willing to allocate a पोर्शन ऑफ बजट. तो शॉपिंग बिहेवियर कैसा है, कुछ लोग है बहुत उनके पास पैसा है तो वो लेविशली खर्चा करना चाहते हैं. कुछ लोग पैसा होकर भी खर्चा नहीं करते. कुछ लोगों की आदत है कि मिनिमम उनको आदत ही होती है कि बाहर स्पेंड करो, पैसा हो नहीं हो कैसे भी करके क्रेडिट कार्ड से भी लोग खर्चा करते रहते हैं. सो व्हाट इज द बिहेवियर, एग्जैक्ट बिहेवियर ऑफ योर कस्टमर. और ऐसे 3-4 टाइप के मॉडल्स आपको इसमें बनाने पड़ते हैं. रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाला बंदा जो एक बहुत लैविश है और बहुत खर्चा करता है. एक रिटायरमेंट प्लानिंग वाला बंदा जो बहुत सोच समझ के खर्चा करता है बट उसका इनकम लेवल ही कम है. आपको हर एक के इंडिविजुअल केस स्टडी के हिसाब से आपको वो प्लानिंग करनी पड़ेगी. हर एक के चैलेंजेस अलग है, हर एक का एस्पिरेशन अलग है, हर एक का शॉपिंग स्टाइल अलग है, और इसकी वजह से इसको टैप करके एग्जैक्टली उसको आपको गाइड भी करना पड़ेगा और आगे लेके जाना पड़ेगा. तो शॉपिंग बिहेवियर में भी देखो प्रीफर्ड कैसे चैनल्स है, ऑनलाइन बिहेवियर क्या है, वो सर्च टर्म में क्या लिखता है, ब्रांड्स कौन से अच्छे लगते हैं उसको, बैरियर्स क्या है. इजंट इट वंडरफुल? टैबुलर फॉर्मेट में हो गया ना आपका सबका पर्सोना तैयार. यस. इसके लिए पिछली बार जब 2 महीने पहले हमने बनाया था तो काफी परेशान. कितना दिक्कत हुआ था, एक ही पर्सोना बना पाए थे, तभी नहीं था चैट जीपीटी हमने जब स्टार्ट किया था. सो अभी काफी सारा इजी गो हो गया एंड देयरफॉर अभी आप लोग ये टूल के साथ काफी पर्सोनाज बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर, एक एज ग्रुप पर्टिकुलर. आपने अगर ये बैकग्राउंड वर्क प्रॉपर कर लिया, एक प्रॉम्प्ट अगर प्रॉपरली दे दिया यहाँ पे कि ये कैटेगरी का इसका पर्सोना बनाओ, तो वो रिसर्च आपको प्रॉपरली करके देगा. फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, और ये एडिटिंग जब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेटेड वो पर्सोना तैयार हो जाएगा. सो हैव यू अंडरस्टूड AIPRM टूल? नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द मार्केटिंग फनल. अभी कस्टमर पर्सोना तो बन गया, अभी हमें मार्केटिंग फनल बनाना है, मार्केटिंग फनल को समझना है. आई नीड एवरीवन्स रिस्पॉन्स फास्ट, वेरी फास्ट. all our listeners very well listening to me. सबके रिस्पॉन्स आने तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगी. आई नीड ऑल 22 रिस्पॉन्सेस. यस.
Yes, Jayashree, do you want to ask anything? Okay. यस मैम। मैम ये कस्टमर पर्सोना वाली उससे एक बार स्टार्टिंग से दिखाना, आपने क्या टाइप किया था? कस्टमर पर्सोना के लिए ना, मतलब मैंने तो यार PRM टूल ये किया। ओके, न्यू चैट करती हूँ। AI PRM टूल ये हमने तो एक्सटेंशन ऐड किया और यहाँ पे बस बायर पर्सोना को सर्च किया। ओके, बायर पर्सोना सर्च करते हो तो ये सारे आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स आ जाते हैं, लेकिन इसमें से हमने चूज किया बायर पर्सोना लेजेंड। अभी आप लोग ना प्रैक्टिस के लिए ये बाकी के जो प्रॉम्प्ट है ना वो भी यूज करके देखो कि कैसा पर्सोना जनरेट होता है, वहां से भी आपको एडिशनल इनपुट्स मिल जाएगा। सो बायर पर्सोना लेजेंड जो है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और सिंपली लिखोगे कि क्रिएट अ बायर पर्सोना फॉर म्यूचुअल फंड advisor who want to advise about retirement planning for the age group। देखो मैं थोड़ा क्लियरली दे रही हूँ, आप सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग लिख के भी छोड़ दोगे तो भी वो बनाएगा, बट थोड़ा सा और क्लियरिटी देंगे तो उतना आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगा। 30 to 50, तो ये अगर you're defining here is a clear segment. हाँ, या दैट्स व्हाट, तो और ज्यादा क्लियरिटी मिलती है। Yeah. ओके, सो और ये हमने किया था। अभी यही हम लोग दूसरा भी प्रॉम्प्ट देंगे तो भी आपको देख सकते हो, और भी और कैसे मॉडिफाई कर सकते हो वो भी हम लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पे भी अभी उसने और एक अलग केस स्टडी बना दी। तो इसका ये है कि पहले ये डेमोग्राफिक देगा, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन देगा। ऑलरेडी ये मैंने मैन्युअली हमने कराया था। सो नाउ अभी ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। यूजर डिस्क्रिप्शन, साइकोग्राफिक्स, शॉपिंग बिहेवियर कैसा है इसका, एंड यस दैट्स इट। नाउ वी कैन यूज दिस कस्टमर पर्सोना टू बिल्ड अ मार्केटिंग फनल। यस जयश्री, व्हाट इज योर डाउट? मैम ये ऐसा कोई इससे रिलेटेड डाउट नहीं है, बट मेरा डाउट थोड़ा ऐसा है कि आप जो है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होके समझाती है, क्योंकि नीश काफी लोग का यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो मैम मेरा नीश जो है वो न्यूरोसाइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो मैम न्यूरोसाइकोलॉजी से रिलेटेड है क्या? यस मैम, तो इन दोनों को रिलेट करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो कुछ मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या है ना जयश्री, न्यूरोसाइकोग्राफिक्स में क्या सर्विसेज आती है ना, वो थोड़ा सा मैं देखूंगी और आपको गाइड करूंगी, तो उसी के पर्सपेक्टिव से आपको प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट अगर लिखने नहीं आ रहा है तो टेक द हेल्प ऑफ स्वरा, शी विल गाइड यू। ओके, कि कुछ भी अभी पर्सोना जनरेट करना है। अभी न्यूरो मतलब न्यूरो में आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ये मुझे पहले समझना पड़ेगा, then only I can guide you कि how you there will be multiple segments, और फिर उसमें से आप कैसे, लेकिन आपके निश के रिलेटेड ही करो तो ही आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगले इसमें हम लोग बाद में एक केस स्टडी तैयार करेंगे, उसमें हम लोग आपका भी एग्जांपल ले सकते हैं जयश्री, एंड वी कैन डू इट लाइव। थैंक यू मैम। या सो वी कैन डू इट एंड यू विल अंडरस्टैंड। लास्ट टाइम हमने योगा का लिया था, वैसे ये टाइम तो तुम्हारा भी हम लोग लेंगे। तो किसके लिए क्या यूजफुल होता है वो तुम्हें अंडरस्टैंड करना है। जरा बताओ तो तुम्हारा क्या सर्विसेज होता है? मैम अभी कोई सर्विसेज नहीं है, अभी तो मैम मैं पढ़ रही हूँ, ग्रेजुएशन में हूँ, तो अभी एज सच कोई सर्विसेज नहीं है, बट मैम आगे जाके मुझे जो करना है उस हिसाब से। हाँ, तो वो क्या क्या करोगे आप, वही तो मैं पूछ रही हूँ। मैम न्यूरोसाइकोलॉजी में जिसको ब्रेन को स्टडी करना। ओके, सो न्यूरोसाइकोलॉजी में बेसिकली you will do the counseling for the people. Yes ma'am, yes ma'am. Those who has neuro issues or something like that. Yes, okay. So आपका भी देखो वापस एडवाइजिंग का ये मॉडल है ना, तो अगेन ये आपको कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अगेन आप भी सर्विस इंडस्ट्री में ही हो, थोड़ा प्रोडक्ट इंडस्ट्री होता है तो थोड़ा सा अलग करना पड़ता है, अदरवाइज सर्विस में
ये सिमिलर टाइप के प्रॉम्प्ट जाते हैं, बट थोड़ा सा आपका डीपली डाइव करना पड़ेगा कि आपका क्या सर्विसिंग है, एंड अकॉर्डिंगली हमें अलाइन करना पड़ेगा. सो वो थोड़ा सा करेंगे हम लोग आगे जाके, तुम्हें थोड़ा सा और मैं गाइड करूंगी. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मार्केटिंग फनल. अभी एक बार हमने ये फनल स्ट्रैटेजी समझी. बहुत डिफिकल्ट था ये मार्केटिंग फनल को टैप करना, बट अगेन ऑलरेडी सब कुछ चैट जीपीटी करके दे रहा है आपको, तो रिसर्च जितना करना है उतना करके आप लोग इसका यूज करके पूरा सारे मॉडल बना सकते हो. तो मार्केटिंग फनल स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा, ऑलरेडी ये मार्केटिंग फनल मेरे जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होती है, मैं जो वेबिनार्स करती हूँ, उसमें भी सबसे पहली चीज मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कस्टमर के साथ अगर कनेक्ट होना है तो सेल अगर करना है, आपका अल्टीमेट अगर गोल है कि आपको सेल्स ड्राइव करना है, आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, तो अल्टीमेटली यू शुड मेक कनेक्शन विथ योर कस्टमर एंड यू शुड अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ योर कस्टमर. तो जब हम लोग जर्नी की बात करते हैं तो दैट इज बेसिकली बिल्डिंग अ फनल, कि कैसे होगा, एक जो कॉन्सेप्ट मुझे इंप्लीमेंट करना है, सो दैट गोल शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि मुझे मेरा ये गोल है एंड आई वांट टू फुलफिल दिस गोल. सो उसके लिए आइडा मॉडल में, सॉरी, मार्केटिंग फनल मैं कैसे बिल्ड करूंगी. तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है कि ये जो कस्टमर पर्सोना है उसको मुझे उसकी जो एक साइकोलॉजी है वहां से लेके उसको पहले बताना पड़ेगा, भाई ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, व्हाई यू शुड डू द रिटायरमेंट प्लानिंग. उसके पहले भी ये आपको बोलना पड़ेगा कि आई एम देयर इन मार्केट टू हेल्प पीपल, जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करके जिंदगी उनकी आसान हो सकती है. तो ये जो आप लोग बताते हो बेसिकली, ये जो आपको रियलाइजेशन होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि आप एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो, और फिर ये अवेयरनेस की तरफ हम लोग जाते हैं एंड देन वी मूव ऑन. तो अभी हम लोग अवेयरनेस में, कस्टमर सिर्फ सुनता है अवेयरनेस में, उसको इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए ना, दैट इज द नेक्स्ट फेजिंग. अवेयरनेस विल क्रिएट द अवेयरनेस, लेकिन आपका अगर इम्पैक्ट अवेयरनेस का उतना स्ट्रांग नहीं होगा तो कस्टमर आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, तो इंटरेस्ट क्रिएट होने का सवाल ही नहीं आता. और इंटरेस्ट अगर क्रिएट करना है तो उसके पहले एक पैरामीटर आता है, ऑल द एवरी टाइम आई टेल यू, विच इज नोन एज क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग में सिर्फ नहीं तो डेफिनेटली कस्टमर के इमोशंस के साथ, हार्ट के साथ जुड़ना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट. जब क्यूरियोसिटी आएगी तभी एंगेजमेंट होगी, क्यूरियोसिटी नहीं आएगी एंगेजमेंट नहीं होगी. Are you getting my point? So what all efforts you are taking to generate the curiosity, that is also very, 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 very important. तो curiosity generate करना बहुत मायने रखता है और ये बहुत बहुत important है. और एक बार आपने curiosity generate कर ली तो ऑटोमेटिकली engagement होना स्टार्ट हो जाएगा. engagement जैसे होगी फिर वो अगले फेज में जाएगा इंटरेस्ट के. So basically while understanding marketing funnel समझने के लिए कस्टमर कैसे एक स्टेज से लेके लास्ट कन्वर्जन की स्टेज तक मूव करता है, ये जर्नी को हमें समझना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज आइडा मॉडल इन मार्केटिंग फनल. सो मार्केटिंग की वर्ड्स में उसको आइडा मॉडल बोलते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. तो 3 स्टेजेस में ये आइडा मॉडल डिवाइडेड है, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल. जब हम लोग टॉप ऑफ द फनल की बात करते हैं तब पहले तो हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, बाबा मैं हूँ. अवेयरनेस क्रिएट करने से क्या होता है, तो बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करने से लोगों को ये पता चलता है कि ऐसी भी कुछ चीज मार्केट में है जो मेरे लिए यूजफुल हो सकती है, एंड इनडायरेक्टली इट क्रिएट्स ब्रांड अवेयरनेस. तो आपकी ब्रांड, आपका नाम, आपको लोगों को पता होने लगता है. जब बार बार उनको ये पता दिखाई देता है तब उनकी बिलीफ सिस्टम, साइकोग्राफिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो उनकी बिलीफ सिस्टम बिलीव करने लगती है. तो यस, दे आर द पीपल, यस दिस पर्सन कैन प्रोवाइड मी राइट सोल्यूशन. तो ये जब हम लोग ये पहला टॉप ऑफ द फनल से लेके फिर मिडल ऑफ द फनल तक आते हैं तो बेसिकली तभी हम लोग उसको इंटरेस्ट से लेके इंटेंट की फेज में लेके जाते हैं कि इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और फिर उनको गाइड करते हैं, उनको हम लोग बेसिकली मेंटोर करते हैं कि आपको राइट ऑप्शन सही तरीके से आपकी जिंदगी आसान करने के लिए कैसे चूज करना है.
and that's add basically very good value to them. And once you add very good value to them, then you reach to the bottom of the funnel. Once you reach to the bottom of the funnel, explaining your product is the best solution. तो फिर डेफिनेटली वहां पे आपने जो पड़ाव से उसको स्मूथली हैंडल किया है, वो ऑलरेडी कस्टमर इतना ओवरवेल्म हो गया, उसको लगता है कि बस आप कितना उसके भले का सोच रहे हो, and definitely he start believing in you. और तभी आप वो रीच करते हो कन्वर्जन की स्टेज को. अदरवाइज डायरेक्टली चलो करो आप लोग, मैं इतना अच्छा देता हूँ करके कोई कन्वर्ट नहीं होने वाला है. तो मार्केटिंग का ये गुरु, आज गुरु पूर्णिमा है, दिस इज द गुरु प्रिंसिपल. बेसिकली आपको ये सारे स्टेजेस से जाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन ड्राइव द सेल्स, अदरवाइज नॉट. सो दीज आर द 3 लैडर्स. और इसमें बेसिकली हम लोग कैसे मूव ऑन करते हैं. पहला जो फेजिंग है दैट इज अवेयरनेस. टॉप ऑफ द फनल में हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जो क्या करेगा, इंटरेस्ट जनरेट करेगा. इंटरेस्ट कैसे आएगा, अभी ये जो कस्टमर पर्सोना बनाया ना हमने रिटायरमेंट प्लानिंग वाले लोगों का, उसको हम लोग पूरा प्रॉपरली रीड करेंगे, समझेंगे ये बंदा क्या करता है, इसके क्या चैलेंजेस है, और फिर हम लोग समझेंगे इसके साथ कैसे बात करनी चाहिए कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ और मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, आगे की जिंदगी आसान कर सकता हूँ, ताकि उसको इंटरेस्ट क्रिएट हो. और मुझे क्या एक्शंस लेनी चाहिए. When we think about actions, you should think from the perspective of digital as well as physical, क्योंकि हम लोग तो बिजनेस फिजिकल भी करने वाले हैं और डिजिटल भी करने वाले. हमारे नियर डियर वंस है, उनके लिए तो हम लोग फिजिकल भी करेंगे एंड देन हम लोग डिजिटल भी करेंगे. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग ये डिजिटल और फिजिकल बिजनेस कैसे करेंगे और हम लोग फिर आगे मूव ऑन करेंगे. सो एक बार वो इंटरेस्ट की फेज तक आ गया, फिर वो कंसिडरेशन की फेज में कैसे जाएगा, कैसे कंसिडर करना है कि बाबा वो कंसिडरेशन के कन्विंस कैसे करना है, उसको क्या एक वैल्यू एडिशन और देना है जो उसको ना इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए मजबूर करे. और एक बार आपने सर्विस दे दी, फिर आता है एक्शन, फिर दैट इज कॉल्ड एज CTA, कॉल टू एक्शन. तो कंसीडर एक बार कर लिया तो कस्टमर को सेल में कन्वर्ट करो, वो पैसा भरना चाहिए, दैट इज द एक्शन. एक बार उसने एक्शन ले ली तो फिर आपकी एक्चुअली एग्जैक्ट आपकी सर्विस कैसी है उसके ऊपर आगे के एक्शंस डिपेंड करते हैं कि लॉयल्टी, आप कितना अच्छे से कस्टमर को जो कमिट किया है वो प्रोवाइड कर रहे हो, कितना अच्छे से कस्टमर्स को हैंड होल्ड कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक्शनेबल्स, एक्शन उनकी जो है वो उन्होंने आपके ऊपर विश्वास रखने के बाद ले तो ली, लेकिन आगे जाके ये लॉयल्टी में कन्वर्ट कैसे होगा, क्योंकि लॉयल जो कस्टमर है वो हमें रिकरिंग बिजनेस आगे जाके देते ही रहता है. चिंता नहीं रहती, रेफरल्स आते ही रहते हैं. और इतना हमारा बड़प्पन सब लोग बात करते हैं कि यस क्या सर्विस है बंदे की, एंड डेफिनेटली दैट जनरेट्स द लॉयल्टी. दैट वर्ड ऑफ माउथ एक्चुअली क्रिएट वन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इनसाइड द पीपल माइंड्स, एज वेल एज वो हार्ट से भी कनेक्ट हो जाते हैं, एंड विच लीड्स टू एडवोकेसी. Why? Because customer will again and again will recommend you. स्टार्ट में ये स्टोरी बहुत स्लो चलती है, बट एंड में ये स्टोरी बहुत पॉपुलर हो जाती है. एंड दिस मॉडल इज नोन एज आइडा मॉडल. अवेयरनेस, देन जब हम लोग आइडा की बात करते हैं तो अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन और एक्शन. हम लोग को कस्टमर पर्सोना को ये 4 फेजेस में डिवाइड करना है, तभी ये 4 फेजेस में हम लोग उसको जब समझेंगे और हम लोग क्या एक्शन लेंगे ये करने के लिए, ये जब हमारा दिमाग सोचने लगेगा और उसको हम लोग जब पॉइंट में लिखेंगे, तब आप सक्सेसफुल मार्केटर बनोगे. Even in physical market and even in digital market, whatever is the product, whoever is the customer persona, if you understand your customer persona, customer in very good way, then definitely you can define all these stages. Are you with me? Are you understanding? So ये जर्नी को डिफाइन करना और मैच करना बहुत इजी हो जाता है.
सबको समझ में आ रहा है what do you mean by funnel? All of you have understood the funnel concept. Concept of marketing funnel is implementing the AIDA strategy, which is nothing but awareness, interest, decision, and action. Type all of you, what is AIDA? AIDA. All 4 words you type in chat box. So you have to map your customer persona towards awareness. Type in map customer persona towards awareness, interest, decision and action. ये brain में ना आपके fit होना चाहिए. I want everyone's answer with all these 4. Yes, that is very very important. और आपको check करना है कि awareness phase से जा रहा है क्या मेरा customer? क्या मेरा customer interest phase में चला गया? क्या मेरा customer decision? और 2 पैरामीटर बोले थे. Awareness और interest के बीच में एक पड़ाव है. What is that पड़ाव? वो पड़ाव है curiosity का. What is that? So while creating the awareness, you must create curiosity, and curiosity will lead to engagement, and engagement will lead to interest. Now type in all these 4 terms. Awareness is equal to curiosity plus engagement. Awareness is equal to curiosity plus engagement is equal to, which will again drive towards the interest. Are you understanding the formula? Curiosity generate हो रही क्या? दिमाग में ऐसा क्या बैठ रहा है जिसकी वजह से ये possible होगा? Awareness is equal to curiosity plus engagement and is equal to, again it will give you interest. It will drive to your customer towards the interest. और जब interest आता है तब कान खोल के सब सुनते, isn't it? तो interest आया कि नहीं वो तो हमें check करना पड़ेगा, isn't it? It is very very important, and all of you must check your customer personas and map. कितने लोगों ने नहीं लिखा है? सब लोग लिखेंगे. I'm going to count it now. I want everyone to write all these, both the formulas. First one, AIDA model, awareness, interest, decision and action. और AIDA मॉडल का पहला पड़ाव और दूसरे पड़ाव के बीच में आपको क्या करना है? You need to generate, you must create curiosity and engagement with your customer. So awareness is equal to curiosity plus engagement, and again, in turn, it will give you interest. Yes, and definitely that is very very important, and be committed कि आप लोग, आपने जो बोला वो आपके कस्टमर को इंटरेस्ट आने के बाद डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसको जो ड्राइव करना है आपको, और डिसीजन भी होगी लेकिन उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस एक्चुअल जो कमिट किया है क्या वो दे रहे हो आप? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज आर द कोर गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, and therefore you will become a successful marketer, because you are not just a marketer, you are well-being of the people. आप लोग लोगों को मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, and therefore definitely you will have a winning formula for your marketing strategy. So isn't it wonderful with ChatGPT? और अभी आपको एक मैजिक दिखाती हूँ, आपको लगेगा कि अभी इसके लिए मैं कितना सोचूं. ChatGPT है ना, तो सोचेगा ना आपके लिए. And then again one more prompt we will give. So there are 4 phases. First phase awareness मिलती है, फिर interest आता है, फिर decision लेता है. interest आने के बाद yes ये बंदा मेरे लिए, decision ले लो, और फिर वो आपको add to cart मतलब कर देता है और action लेता है, पैसा भरता है, आपका customer हो गया. And yes, closing. So what is this AIDA model? How it builds and helping building marketing strategy? पहले तो वो attention grab करता है. Now see the phases. Attention मतलब awareness phase में attention grab करना पड़ता है, और attention grab करने के लिए curiosity और engagement बहुत मायने रखती है. Curiosity और engagement करने के लिए हमारे content, हमारे images, हमारे एडवर्टाइजमेंट, आई कैच, कंपेलिंग हेडलाइंस,
इंक्लूडिंग विजुअल्स, ऑल मैटर्स विच ड्राइव्स द अटेंशन। अभी हमें यहाँ पे डीपली डाइव करना पड़ेगा ना, कैसे आएगा बाबा अटेंशन, मैं क्या बोलूं, वो एक पिच लाइन क्या बोलूं, so that people will connect with me. That is the attention grabbing headline. क्या ग्राफिक में डालूं so that वो क्यूरियोसिटी जनरेट हो। डू यू नो व्हाट, ये ऐसा हुआ था, सडनली पीपल क्या हुआ था बाबा, मुझे तो सुनना है, isn't it? So आप कैसे उस अटेंशन को ग्रैब कर रहे हो, फर्स्ट फेज में कैसे जा रहे हो, आइडा मॉडल में ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमें चैट जीपीटी भी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में हमें हेल्प करेगा। अटेंशन कैन बी गेन थ्रू आई कैचिंग एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी हो सकता है। क्यूरियोसिटी क्या जनरेट करेगा, एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यस क्या आप ये सफर कर रहे हो, तो पीपल सोचेंगे अरे कुछ तो मेरे रिलेटेड है। हेडलाइन एक कुछ पढ़ते हैं और एक अच्छा सा जो मुझे कनेक्ट हो रहा है, यस दैट इज अ कंपेलिंग हेडलाइन। इंक्लूडिंग विजुअल्स, तो विजुअल्स कैसे है, यस कितना बाबा मन पसंद, मतलब बहुत असर पड़ा ये आपकी क्रिएटिविटी का। सो दैट इज, तो देखो आप सोशल मीडिया में हम लोग सब करेंगे तो अटेंशन आ रहा है कि नहीं, ये पहले टेस्टिंग करना पड़ेगा हमें बैकएंड में, विच इज नोन एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम लोग को टेस्टिंग फेज से गुजरना पड़ता है। मशीन बनाने के लिए ही सिर्फ टेस्टिंग नहीं लगता, एक फ्रूटफुल मार्केटिंग फनल जो आपको रिपीटेटिव सेल्स दे, उसके लिए इतने बैकग्राउंड के एफर्ट्स आपको लेने पड़ते हैं, देन ओनली यू कैन रीच टू दैट स्टेज। अंडरस्टैंडिंग पीपल इज नॉट अ वेरी इजी टास्क, you need to take the efforts towards it. So once you grab the attention, then you move on to the attention में ये दोनों हो जाता है, क्यूरियोसिटी प्लस इंटरेस्ट, मतलब आपका एंगेजमेंट और क्यूरियोसिटी एंगेजमेंट हो जाता है तो उसको इंटरेस्ट आ जाता है। देन ही मूड ऑन टू द इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट आने के बाद यस ये बंदा चाह रहा है कि मुझे आगे की इंफॉर्मेशन, तो कैसे बात करनी है इंफॉर्मेशन को, पेन पॉइंट कैसे सॉल्यूशन होगा, पेन पॉइंट कैसे सॉल्यूशन होगा। सर मुझे पता है आपका ये चैलेंजेस है क्या, तो उसको लगेगा चलो भविष्यवाणी हो रही है, मेरी जिंदगी का पार्ट चल रहा है। Isn't it interesting? Yes or no? वो ज्योतिष के पास सब लोग क्यों इतने एंगेज रहते हैं, एनग्रोस रहते हैं, हाथ क्यों दिखाते हैं सब लोग, अरे बहुत सुनते हैं, यस मुझे तो क्यूरियोसिटी इतनी होती है, मेरे जिंदगी में क्या होने वाला है वो सब बताना चाहते हैं। Yes or no? All are curious, I know. अभी मैं बताऊंगी, चलो मैंने ज्योतिष भी चालू कर दिया, हर एक का भी मैं भविष्य पढ़ूंगी, तो एवरीवन विल बी सो हैप्पी कि चलो मैडम क्यू में खड़े हो जाते हैं। सो हर एक को एक जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत मायने रखती है, इसके लिए इनके बिजनेस ज्यादा चलते हैं। They play with emotions of people basically, and they play with the psychology of people. हम लोग अच्छे के लिए तो उनके साथ जुड़ सकते हैं, and in right way we can plan our marketing strategy. So this is a fun activity and actually you should do it. So ये जब आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हो, उसको रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हो, वो बंदे को लगता है कि अभी यहाँ पे लिखो कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू पेन पॉइंट ब्रैकेट में चैलेंज प्लस सॉल्यूशन। आप दोनों एक्सप्लेन करोगे, मुझे पता है आपको ये प्रॉब्लम है लेकिन इसका ये सॉल्यूशन भी है, आप क्यों चिंता करते हो। Isn't it wonderful? You must write. Yeah, you can do neuro marketing. Yes. जयश्री just थोड़ा brainstorm करो, थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी चाहिए, मैं तुम्हें ये करूंगी। Just write interest is equal to, इंटरेस्ट कैसे जनरेट करोगे और कैसे ड्राइव करोगे, पेन पॉइंट प्लस सॉल्यूशन। एंड पेन पॉइंट इज क्या चैलेंज से वो बंदा गुजर रहा है और क्या सॉल्यूशन तक आपको लेके जाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज फॉर्मूलाज ना सोते जागते उठते बैठते सबके दिमाग में छाने चाहिए, एंड देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे, एंड दैट्स ग्रेट। दैट पेन पॉइंट और सॉल्यूशन भी हो गया, चलो आपने बता दिया, फिर उसकी इच्छा हो गई, यस बाबा महाराज आप ही मेरे लिए हो, अभी चलो कुछ करो ऐसा मैजिक कि मुझे सॉल्यूशन दे दो।
and then the customer goes into the desire phase. Isn't it interesting? Are you finding marketing funnel as interesting way of marketing and connecting with the people? Yes. So it is very, very important. Right tarika, right cheeze, everything. Actually, you must follow the protocols which are proven. बस कुछ भी करो, कैसे भी करो, चलता है, चलता नहीं है बाबा, करना पड़ता है, एंड स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ता है और वैसे ही जाना चाहिए. So therefore you can create that compelling thing. So desire, now अभी desire में जब आते हैं, एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो फिर आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसको चाहिए. तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे कि सर आप ही फर्स्ट नहीं हो, ये चैलेंजेस ये लोग भी फेस कर रहे थे. अभी टेस्टिमोनियल देने का वक्त आ गया ना भाई, ये लोग भी ये चैलेंज से जा रहे थे. देखो अभी ये कितने कुछ है उनकी जिंदगी में, हंसी हंसी है और खुशी खुशी है. आप भी ऐसे हंसी खुशी शेयर कर सकते हो. सो टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज. सर मैं एक डेमो दिखाता हूँ आपको कि मेरा प्रोडक्ट आपके लिए कैसे यूजफुल है. सो यू कैन डेमोन्स्ट्रेट. और डिजायर को इतना करोगे, इतना कि बस वो एक्शन ले ही लेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा बाबा टू जनरेट द डिजायर. और डिजायर के वक्त आपको केस स्टडी दिखानी पड़ेगी. यस बराबर है, आप सही तरीके से सोच रहे हो, मैं ही हूँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला. सो just showcase the testimonials, showcase the case studies, showcase, demonstrate. And yes, उतना जागरूक करो ना उसका, बस कि बस मुझे ये बंदे से ही सर्विस लेनी है, ये बंदे का ही प्रोडक्ट लेना है. And that is the desire. So desire is equal to what? Forceful action. Desire is equal to forceful action by providing the proofs which customer should take. तो यहाँ पे proofs सारे provide करने हैं. Desire is equal to providing the proofs which will lead to forceful action. Which will lead to forceful action. Desire is equal to providing the proofs which will lead to forceful action. All of you write. What is desire stage? How you will match it? Provide testimonials, case studies, proofs to generate forceful action. और forceful action जब आप करते हो, ये सारे टेस्टिमोनियल्स उतने होते हैं तो ये फोर्सफुल एक्शन हो जाता है. एंड देन दैट गेट्स यू कन्वर्जन. सो आपको ये देखना है कि बराबर फोर्स लगने वाला है कि नहीं मेरी ये स्ट्रैटेजी में. सो द स्ट्रैटेजी विच आई हैव प्लान्ड, वेदर इनफ फोर्स इज जनरेटेड. अगर वो इनफ फोर्स है तो डेफिनेटली आगे हम लोग ड्राइव करेंगे. सो डिजायर, yes. So desire is equal to providing the proofs to create the forceful action, and that is very important. So once you understand that, this is the AIDA. क्यों AIDA? बाबा ये सारा प्लान करने तक आप कभी भी मार्केटिंग में, ना फिजिकल मार्केटिंग में, ना डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते. People don't do the groundwork, they don't understand the concept, and directly they tap the customers, and therefore their marketing funnel fails. हमें मार्केटिंग फनल जब तक सक्सेसफुल नहीं बनाते ना, तब तक कंटिन्यूअसली काम करना है. और वो जैसे सक्सेसफुल बन जाता है, repeatedly it will keep on giving the result and repetitive results which will drive you towards the success. So यहाँ पे attention grabbing headlines करनी है तो फिर क्या क्या करना पड़ता है. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है. To capture the attention of potential investor and generate interest in attending your webinar, employ the following strategies. ये मैंने ChatGPT को पूछा था, मुझे वेबिनार करना है
जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं और मुझे उनमें इंटरेस्ट जनरेट करना है, लिख सकते हो नॉर्मल चैट जीपीटी में। तो फिर वो बोलेगी क्या क्या स्ट्रेटेजीज करनी चाहिए। यस, यू शुड हैव कंपेलिंग सब्जेक्ट लाइन, आई कैचिंग विजुअल, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, एक ही टारगेट ऑडियंस को करो। देन इंटरेस्ट, सेकेंड जो फेज है इंटरेस्ट का, वहां पे क्या चाहिए, कंपेलिंग कंटेंट, ये फेज 1 में है। पहले फेज 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, अटेंशन कैप्चर कर रहे हैं। सो अटेंशन में क्या पैरामीटर्स, आपको सब्जेक्ट लाइन के बारे में सोचना है, आपका विजुअल कितना आई कैचिंग है और आपके टारगेट ऑडियंस के साथ ये कैसे मैच हो रहा है। फिर इंटरेस्ट की फेज में आपको क्या करना है, आपके कंटेंट को टेस्ट करना है कि ये इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी जनरेट करके ये कंटेंट सच में उनको ये दिखा रहे कि ये प्रोडक्ट इनके लिए कितना यूजफुल है, उनके पेन पॉइंट और गेन तक वो कैसे जाएंगे वो बता रहा है। यस, सो बेनिफिट एंड टेक अवे, सोशल प्रूफ, और आप लोग उसको टेस्टिमोनियल दे रहे हो। फिर ये डिजायर के लिए एक्सक्लूसिव एक्सेस, एंगेजिंग स्पीकर्स, क्या करने वाले हैं और कौन आपकी जिंदगी आसान करने वाला है ये वेबिनार अटेंड करके, और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, फिर आपके क्वेश्चन आंसर, पोल्स, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, कुछ वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करो सो दैट दे विल फील दैट यस ये बंदा सही में हमारे लिए कुछ कर रहा है। एंड देन फाइनल एक्शन, आप उनको क्रिस्टल क्लियर बताना चाहिए कि आपको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। आपको खुद को ही कई बार क्रिएट नहीं होता। अगर रजिस्टर किया ऑन द स्पॉट तो आपको क्या मिलेगा, और फिर बैकएंड में रिमाइंडर ईमेल्स। बन गई आपकी पूरी स्ट्रेटेजी, बन गया ना आपका मार्केटिंग फनल, फुल प्रूफ मार्केटिंग फनल। सो ये 4 मॉडल में बनेगा, मैपिंग कस्टमर पर्सोनास टू ईच फेज ऑफ फनल। और फिर हम लोग एक अवेयरनेस स्टेज, इंटरेस्ट स्टेज, डिसीजन स्टेज में हमारे कस्टमर को मैप करेंगे, आइडेंटिफाइंग एप्रोप्रिएट मार्केटिंग चैनल टू फिजिकली एंड डिजिटल मार्केट। तो नेक्स्ट जो हमारा है, तो राइट मार्केटिंग चैनल का हमें, अगर ये आइडिया को यूज इंप्लीमेंट करना है हमें, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कौन सा मार्केटिंग कहाँ पे करे, कैसे करे। अभी ये अवेयरनेस करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा ना मार्केट में, जो आपने सर्वे किया, जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था, वैसे ही डिजिटल में भी हमें कुछ टैक्टिक्स यूज करनी पड़ेगी। सो चूजिंग द राइट मार्केटिंग चैनल इज क्रूशियल, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ योर बिजनेस एंड प्रेफरेंस पर्सोना। ये सारा आपके फिजिकल मार्केट में कैसे जाएगा, ये आपको सारे पैरामीटर्स को सोचना पड़ेगा। लेकिन डिजिटल में हम लोग जब स्ट्रैटेजी करेंगे तो स्काई इज द लिमिट, हम बहुत सारे लोगों के साथ, हमारे कस्टमर टारगेट ऑडियंस के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, एंड देयर आर वेज टू कनेक्ट, बट योर robust marketing strategy will drive your customer towards you। यही अगर तैयार नहीं है तो आपको पोटेंशियल रीच नहीं मिलेगा। सो बाय आइडेंटिफाइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्केटिंग चैनल फॉर योर, आपके टारगेट ऑडियंस किधर है, मिड एज के, तो वो अक्खा टाइम नहीं बैठे हैं चिट चैट करते, वो कुछ और भी कर रहे हैं। तो आपके कौन है टारगेट ऑडियंस, कहाँ पे मिलेंगे आपको, ढूंढो उनको सोशल मीडिया में, ऑलरेडी कस्टमर पर्सोना में उधर रिसर्च कर लिया, ये बंदा ऐसा है तो इधर ढूंढना पड़ेगा उसको। एंड देन ये आप फिजिकल डिजिटल का कॉम्बिनेशन यूज करके आप सारी मार्केटिंग फनल की स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हो, आपके ऑफलाइन फनल के लिए भी और ऑनलाइन फनल के लिए भी। और फिर 4th स्टेज आता है टेलरिंग मैसेजेस कंटेंट, फिर आपका अवेयरनेस स्टेज, इंटरेस्ट स्टेज में आपको टेलरिंग मतलब एक प्री डिफाइंड, एक बराबर प्रॉपर जो मैसेजेस कंटेंट फनल स्टेज, हर एक फनल स्टेज को कैसे आगे लेके जाएंगे वैसे मैसेजेस बनाने पड़ेंगे, और वो भी हमें चैट जीपीटी हेल्प करेगा। लेकिन खुद जब तक कुछ दिमाग लगा के कुछ टाइप नहीं करते हो ना, तब तक चैट जीपीटी कुछ नहीं करने वाला। और अगर आपको अच्छे से ये ड्राइव करना है तो डेफिनेटली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सब कुछ तो करना है। अभी हमने रिटायरमेंट प्लानिंग का एग्जांपल लिया था, आपने सोचा कि, या मैंने अभी जो एग्जांपल लिया कि जो लोग एस्पायर कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोगों को मुझे टैग करना, बस वेट कर दिया, मुझे एक वेबिनार करना है, दोज हु वांट टू प्लान फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स,
लेकिन क्या क्या करने वाला हूं मैं उनके साथ? हैव यू सेट द क्रिस्टल क्लियर गोल कि ये महीने में मुझे कितनी SIP क्लोज करनी है, ये महीने में मुझे कितने लोग चाहिए? अगर मुझे 100 क्लोज करने हैं तो मुझे 1000 लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। 1000 लोगों के पास पहुंचने के लिए फिजिकल मार्केट में मैं क्या कर सकता हूँ, डिजिटली क्या कर सकता हूँ, उतनी स्टोरी आपने बिल्ड की है क्या? हम लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं। वी डू नॉट सेट वेरी क्रिस्टल क्लियर गोल एंड वी डू नॉट सेट द टारगेट्स। ऑलरेडी मैंने सबकॉन्शियस माइंड का फंडा बताया था। जब तक आप फोर्सफुल गोल सेट नहीं करते हो और रोज आपको वो ध्यान में नहीं आता है मुझे ये करना है करना है करना है, जैसे एग्जाम के टाइम हम लोग करते हैं। एग्जाम बाय डिफॉल्ट मुझे फाइनल एग्जाम देनी है और बाय हुक और क्रूक हमें पढ़ाई करनी ही पड़ती है, किसी को एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अभी ये असाइनमेंट भी आपने ऐसे ही की ना, क्लियर था कि बाबा 3 दिन में कंप्लीट करनी है एंड देयरफॉर यू डिड इट। सो सेट क्रिस्टल क्लियर गोल्स एंड टारगेट, दो नॉट ओनली गोल्स। मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग के लोगों को मदद करनी है, इट इज नॉट अ गोल। बाबा उनका कितने लोगों का पोर्टफोलियो बनाना है आपको, सेट क्रिस्टल क्लियर। ऐसे में 25 अलग अलग रिटायरमेंट प्लानिंग वालों की केस स्टडी बनाऊंगा, तो 25 ये टारगेट हो गया। टाइम बाउंड किधर है, कितने दिनों में चलता रहेगा क्या? 1 साल 25, 1 महीने में बनाना है, 2 महीने में करना है। सेट योर क्रिस्टल क्लियर गोल। These are called as key performance indicators. Key result areas and key performance indicator जब तक आप मैच नहीं करते हो, crystal clear goals with crystal clear targets, that is key result areas, and for each area there is a performance indicator. जब तक ये मैच नहीं करते हो तब तक आपकी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी नहीं बन सकती, तब तक आप सक्सेसफुल मार्केटिंग फनल नहीं बना सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Everyone, I need response from everyone. And therefore it is very very important कि आप लोग इसको बहुत सीरियसली लेके थोड़ा सा मेहनत कैसे करो, टाइम कैसे निकालो। Once you take out the time, then definitely यहाँ पे आपका 1 टाइम का एफर्ट हो जाएगा, लॉन्ग रन में रिजल्ट देगा। तो क्या इंपॉर्टेंस है, सब नोट्स में मैंने सब कुछ डिटेल में दिया है। काइंडली प्लीज मेक श्योर यू रीड द बुक्स ट्वाइस, और ये रीड करने ही है आपको। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग क्रिस्टल क्लियर गोल, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वही है। डिफाइनिंग मेजरेबल टारगेट्स विच आर नोन एज परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, दीज आर नोन एज KRAs, गोल्स आर KRAs। और स्मार्ट गोल होने चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। और अभी आपकी बारी है, आपको ये गोल सेट करना है और उसके हिसाब से फनल डिजाइन करना है। डायरेक्ट आप फनल डिफाइन नहीं करोगे, आपका पहले मुझे गोल चाहिए। डिफाइन द स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल। ये गोल जब फोकस्ड गोल जब सेट होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि चलो कि मुझे ये इतना अचीवमेंट करना ही है, एंड देन योर परफॉर्मेंस इंडिकेटर विल बी वेरी क्लियर। यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल जो दिए हैं, दैट इज रिलेटेड टू ऑनलाइन स्ट्रैटेजी, जो हम लोग आगे सोशल मीडिया स्टार्ट होने के बाद इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आप लोग फिलहाल अभी हमारा सर्वे फॉर्म तो हो गया है, अभी आप कितना ये महीने में क्लोज करके उससे क्या रिजल्ट लाओगे, इसका मुझे क्रिस्टल क्लियर आइडिया आप सब लोगों से चाहिए। What you are going to give, how you are going to give, that is very very important. असाइनमेंट करना important है, आपका काम साइड में रखो, एक दिन मत करो काम, बीमार हो गए ऐसे समझो, बैठो और ये काम करो। I don't want any more excuses, क्योंकि ये अगर पड़ाव आप क्रॉस नहीं करते हो तो आगे आप नहीं जा सकते। And next time I must see everyone's assignment. All are agree? Yes, just give me agree in chat box. सब लोग करेंगे।
एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी खुद की जिंदगी आपके ही हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है बाबा। यू नीड टू टेक द एफर्ट्स। मत करो एक दिन काम, यही करो, पढ़ाई करो, बट डू इट इन वेल मैनर्ड वे, क्योंकि एक बार कर लिया तो बस यही फनल हमें वापस आगे कई सारे दिनों तक फ्रूट्स देते ही रहता है। सो सारा बहुत स्टेजेस में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। मार्केटिंग फनल स्टेजेस और कस्टमर पर्सोनाज को कैसे मैप किया जाता है और प्रैक्टिकल एक्शंस कैसे करनी है, तो एक्शनेबल स्टेप्स हमें कैसे लेने हैं ये भी आपको दिया है ऑलरेडी, ये मैंने एक्सप्लेन किया। कुछ जो दिया है वो आगे हमने सोशल मीडिया में करना है जो एक्शंस, वो अभी आप ध्यान में मत रखो। अभी जो मैंने प्रैक्टिकली आपको जो बताई वही एक्शंस को याद रखो। और सुटेबल टैक्टिक्स, कैंपेन्स, फिजिकल डिजिटल मार्केट के लिए आप कैसे करोगे, जो हमने डिस्कस किया वही। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करोगे, ऑटोमेशन कैसे करोगे, वेबसाइट एनालिटिक्स वगैरह लैटर पार्ट है, और ट्रैकिंग एनालाइजिंग डेटा ये भी लैटर पार्ट है। बट यस, यू अंडरस्टैंड द फनल, क्योंकि अभी ये एक एक स्टेज में हम लोग करते जाने वाले हैं। और रिजल्ट और टाइम मैनेजमेंट, हमारा टाइम को कैसे मैनेज करना है, कितना रिजल्ट आया, इतने दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ, कुछ रिजल्ट आया कि नहीं उसका, अगर नहीं आया तो व्हाट इज रॉन्ग, यू मस्ट आइडेंटिफाई। और अगर ये रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपकी स्ट्रैटेजी कहीं पे गलत जा रही है, तो यू नीड टू एडजस्ट, यू मस्ट एडजस्ट योर स्ट्रैटेजी एंड यू मस्ट वर्क टुवर्ड्स योर परफॉर्मेंस इंडिकेटर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स यूज करो, डेडलाइंस खुद के लिए खुद सेट करो। डेडलाइंस के बिना कुछ नहीं, ऐसी ही चलती है जिंदगी आराम से, कुछ होता तो है नहीं, चल रही है जिंदगी आराम से आराम से। सो कुछ नहीं होगा एंड देयरफॉर डेडलाइंस आर मस्ट, टारगेट्स आर मस्ट। विदाउट टारगेट्स वी कांट अचीव सक्सेस, क्योंकि विदाउट टारगेट you will not think deeply about your goal. डीपली थिंकिंग नहीं होगा, डीपली ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगा, डीपली ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगा, अकॉर्डिंगली वो सबकॉन्शियस माइंड में कभी नहीं जाएगा एंड यू विल नेवर अचीव द सक्सेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? यस, एवरीबडी, एवरीवन। तो सिर्फ बोलने से बात नहीं बढ़ेगी ना, you need to commit yourself, you need to commit yourself and align yourself towards ROI। मुझे बाबा ROI जनरेट करना है, फालतू का बिजनेस करने नहीं बैठा हूं मैं, या मेरी जिंदगी बर्बाद करने ऐसे ही नहीं आया हूं मैं इधर। बहुत सारा already young comers, Minakshi, Jayasree, I want you people, young people should take the lead. I must see the progress. Pallavi, all of you are there. Afrin, I must actually see the response here. All are listening. So आपको बहुत अच्छे से एक्शन करनी है। आप यंग एज में हो, बहुत अच्छे से टाइम आपको यूटिलाइज करना है। And yes, so that you can drive the success. So that is very, very important. So moving forward, तो challenges, unexpected obstacles, inevitable marketing campaigns में आने वाले, बाबा जिंदगी है तो challenges किसको नहीं है? So it's fine, take the challenge, work out करो, eliminate करो and move on. वही हम लोग कर सकते हैं, बाकी का कुछ सर पे हाथ मार के कुछ नहीं कर सकते. So what you can do it in a better way. And here is a case study where converting customer investors for a mutual fund, customers who want to invest for a mutual fund advisor. तो यहाँ पे ये कस्टमर पर्सोना ऑलरेडी हमने तैयार किया है। फेज 1 में हम लोग तैयार करेंगे आइडा का मॉडल, सॉरी लेजेंड का टूल यूज करके, और फिर बिल्डिंग अ मार्केटिंग फनल स्ट्रैटेजी, ये हम लोग आइडा का मॉडल यूज करके करेंगे, और ये मैं अभी प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ। सेटिंग क्रिस्टल क्लियर गोल, ये केस स्टडी है, केस स्टडी पढ़ो कि इनके गोल्स भी है, प्रैक्टिकल एक्शंस भी है,
रिजल्ट्स भी दिए, तो जो भी फेजेस मैंने एक्सप्लेन किए उसके सारे एग्जांपल भी यहाँ पे दिए। पहले रीड करो, फिर चैट जीपीटी पे जाओ। कितनी बार रीड करेंगे सब लोग? हाउ मेनी टाइम्स यू विल रीड दिस डॉक्यूमेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डॉक्यूमेंट आपका बहुत मायने रखता है। जब तक आप ये पूरा डीपली डाइव नहीं करते हो, till the time you will not get clarity. So this is very very important. So marketing strategy बन गई। आपके क्रिस्टल क्लियर गोल्स की असाइनमेंट मैं डालूंगी। आपको एक तो मार्केटिंग फनल्स बनाने हैं, लेकिन फनल ऐसे नहीं बनाना है। मुझे गोल चाहिए, वो गोल के रिलेटेड पर्सोना चाहिए, पर्सोना के रिलेटेड क्रिस्टल क्लियर एक्शन चाहिए, मुझे अंडरस्टैंडिंग दिखना चाहिए। क्यूरियोसिटी कैसे जनरेट करोगे, एंगेजमेंट कैसे करोगे, एंड कैसे आप स्टोरी के फॉर्म में लिखो, आपका कस्टमर कैसे मूव ऑन करेगा। और ऑल यंग पीपल काइंडली मेक श्योर कि आप लोग एक आपका जो निश चूज किया है उसी के टूवर्ड सारा तैयार करते हैं। कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, गेट इन टच विद स्वरा एंड शी विल हेल्प यू टू डू दैट। बट ऐसे ही मत बैठो, मुझे सबके असाइनमेंट कंपलसरी दिखने ही चाहिए। और ये असाइनमेंट भी थोड़ी सी टफ है, बहुत सारा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है मैं थर्सडे को रख रही हूँ। ऑल आर कमिटेड, 2 दिन में आप लोग कर लोगे बराबर असाइनमेंट? ऑल रिस्पॉन्सेस आई नीड टू सी। 2 days are enough and you must do it. And Thursday again we are starting with, अभी हमने देखा ना विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगेजिंग कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वर्ल्ड ऑफ डिजाइनिंग के वर्ल्ड में जाने वाले अगले लेक्चर से। अगेन इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, appealing towards the customer persona, and again many tools we will learn. So please be committed and complete the assignment. Background work जब करोगे तभी आपके fruitful result आएंगे। Again next session जो हम लोग start कर रहे हैं, again those are also very interesting session. मैंने हर वक्त ही बोला है, मेरा हर एक सेशन will be very very important, और वही आपको डायलॉग रिपीट होगा। Today's session is very important, क्योंकि मैं जिंदगी को कभी इजी लेती हूँ नहीं ना, हर एक चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, and it should be same for you. Today's day is very important for me. What I can do best, what best outcome I can drive from this day, that is very important. And I think everyone will make sure कि आप सब लोग इसके लिए committed भी रहोगे और properly सब कुछ follow करोगे. So now I will teach you the second AIDA model tool, जहाँ पे आपकी business strategy तैयार हो जाएगी। Yes, so notes यहाँ पे complete हो गए हमारे। अभी मैं केस स्टडी एक दिखाती हूँ आपको। आइडा मॉडल हम लोग बिल्ड करेंगे बाय यूजिंग दिस। अगेन आप न्यू चैट में जाओ, सेम चैट में कंटिन्यू मत करो, न्यू चैट में जाओ और यहाँ पे मैं टाइप करूंगी अभी ये टाइम, सारी ही प्रॉम्प्ट्स है, बायर पर्सोना को रिमूव कर दूंगी और यहाँ पे मैं डालूंगी आइडा। आइडा मॉडल के बहुत सारे आ जाएंगे, देखिए आइडा मॉडल फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स एंड मार्केटर्स, ये आपको यूज करना है क्योंकि ये प्रॉपर आपको एक फनल के इसमें दे देगा। ये आइडा मॉडल जो है ये बेसिकली एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग लिखने के लिए है, तो ये हम लोग बाद भी नहीं यूज करेंगे, बाद में यूज करने वाले हैं। इसके लिए बाकी जो मेरी फर्स्ट बैच है, आप सब लोगों को मैंने बोला कि क्योंकि चैट जीपीटी से बहुत ही इजी हो गया है, तो जो हमने ऑलरेडी टॉपिक हुए हैं वो कुछ टॉपिक आपको इनके साथ कंप्लीट करने पड़ेंगे। ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी भी एक क्लिक में आइडा से बन सकती है, तो ईमेल मार्केटिंग जब सीखेंगे तभी ये यूज करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मैं तभी आपको बहुत सारे एक्शंस देने वाली हूँ। तो अभी आइडा के बहुत सारे प्रॉम्प्ट हम लोग फिलहाल कौन सा करेंगे, हमें तो अभी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है ना। सो आइडा मॉडल फॉर एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर्स एंड मार्केटर्स, इट इज अ
मार्केटिंग डायरेक्शन, तो हमें वो वही चाहिए, इसके लिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ऊपर आ जाता है, और अभी हम लोग देंगे यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन ब्रांड नेम, सेकेंड लाइन योर प्रोडक्ट सर्विस एंड हु यू आर सेलिंग टू। तो अभी ब्रांड का नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं wealthy investors investments, you want to give services on retirement planning और एज ग्रुप वही यूज कर रही हूँ मैं 30 to 50। देखो इसको ऐसे दे दी, बस उसने दे भी दिया है फॉर्मेट। देखो देखो पूरा पूरा दे दिया उसने। देखो सजेशंस भी दे दिए क्या क्या कर सकते हो। Isn't it wonderful? रीड करो, देखो कितने इंसाइट्स मिल रहे हैं आपको। Marketing strategy using attention to capture the attention of your target audience, the wealthy individuals aged 30 to 50 who are looking for retirement planning services. It is important to highlight the key benefits and unique selling points of your business. Consider following strategies: compelling advertising, then content marketing, then interest की phase में क्या करोगे, then personalized approach, how it will be, testimonials and case studies, then desire, यहाँ पे कैसे होगा, exclusive benefit, what they will get, and then what action, clear call to action, and then suggestions, do the targeted advertising, do the thought leadership की उनको ऐसे सोचने पे मजबूर करो, ऐसे इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस, रेफरल प्रोग्राम्स कुछ अनाउंस करो, और ये कंसिस्टेंसी जो है, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन है, उसके ऊपर ध्यान दो। हाउ इज इट? सो अपने लिए इतनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कितना टाइम लगता था? अभी सब प्लेट में तो दे दिया है, बस एक्शन तो हम लोग ले ही सकते हैं ना। So now how confident, how much confident all are to do the assignment? I need everyone's result. I need everyone should actually respond. Parmeet, are you there? I'm not able to see your responses. That's great. So you need to create the marketing funnel strategy, proper assignment, step by step, आपके ये actionables सब कुछ वहां पे मुझे दिखने चाहिए, और ऐसे 4 केस स्टडीज आप बनाओगे। कितने मार्केटिंग फनल्स? मतलब आपका निश तो एक ही है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट्स है। 4 सेगमेंट के लिए 4 अलग अलग मार्केटिंग फनल्स आप बनाओगे। अभी यहाँ पे ही देखो, नीचे अभी क्या पूछ सकते हो, मैं इनको पूछ रही हूँ। बाबा काइंडली, अभी मैं कुछ प्रॉम्प्ट नहीं दूंगी, सिंपली बोलूंगी क्रिएट लाइव केस स्टडी मेंशनिंग क्लियर स्टेप बाय स्टेप actions and ROI also
mention clear KRA and KPIs for above IDA generated strategy for retirement planning. देखो यहाँ पे वेल्दी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस दे दिया, स्टेप बाय स्टेप एक्शन, अटेंशन में क्या करेंगे, इंटरेस्ट में क्या करेंगे, डिजायर में क्या करेंगे, फिर एक्शन में क्या करेंगे, फिर आरओआई मेजरमेंट, फाइनेंशियल आरओआई कैसे मेजर करोगे, केआरए की रिजल्ट एरियाज क्या क्या हो सकती है। अभी क्या चाहिए, केआरए केपीआई भी करके दे दिया उसने। लेकिन आपको पूछना चाहिए ना आपको क्या दिक्कत हो रही है। चैट जीपीटी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, एआई पीआरएम को डाउनलोड करो, वहां के काफी सारे प्रॉम्प्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे। और ऐसे 3-4 केस स्टडीज करके इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको कैसे करना है ये मैं बताऊंगी आपको, कि आपको इसके लिए भी ऑलरेडी हमने सर्वे तो किया था। अभी ये जो आप एक्शन प्लान बनाओगे इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है व्हाट्सएप मार्केटिंग से। आपके नियर एंड डियर वंस के साथ ये स्ट्रेटेजी आप इम्प्लीमेंट करोगे फर्स्ट फेजिंग में। और जयश्री, मीनाक्षी, जो भी आपने निश चूज किया है ना, आई वांट कि वो रिलेटेड आप ये मार्केटिंग फनल को आपके नियर वन फिजिकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में अभी इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, डिजिटल में नहीं। आई वांट टू सी द रिजल्ट। और इसके लिए अगर और एक फॉर्म आपको बनाना पड़ा, ये फनल को कैप्चर करने के लिए, आरओआई लेने के लिए कुछ 1-on-1 बात करनी पड़ी, तो वो करनी है ऑलरेडी। वो असाइनमेंट हमने ऑलरेडी कर ली है कि सर्वे कैसे करना है, क्या करना है, तो ये इसी का पार्ट है। बट क्या उसको कन्वर्ट कर पाते हो? अभी मार्केटिंग फनल हमने कॉल टू एक्शन तक बनाया, तो कितने लोग, ऑलरेडी 2 लोगों ने तो पहला फेज ही सीख लिया और कॉल टू एक्शन तक गए। अभी मुझे चाहिए कि आप सब लोग एक एक कन्वर्जन तो लेके आओ ये स्ट्रैटेजी को यूज करके फ्रॉम फिजिकल मार्केट। How many of you can drive the conversions? How many of you are confident? How many conversions you will drive? Let me know. 1, 2, 3, 4, 5. क्योंकि वो स्टोरी तो सारा अभी आपको तो चैट जीपीटी बना के देगा, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मुझे नेक्स्ट वीक के कन्वर्जन्स दिखने चाहिए। यस, दैट्स ग्रेट, that's great spirit. All others, young people, gear up. I want convergence from you people also. जो भी छोटा सा दिक्कत आ रही है स्वरा के साथ कनेक्ट करो, but make sure you implement all the strategies. Ajay, very good for yes, Bhavendra ji, you already started. Meenu, I am not able to see your result. Lalan, I am not able to see your response. Are you there? Yes. That's it. Yes, ma'am. हाँ, yes, Meenu. आप भी अभी थोड़ा सा कंप्लीट करो, बोलो। हाँ, यस मैम, पिछले कुछ दिनों में मैम थोड़ा हेल्थ इशू आ गया था, तो फोकस कर नहीं पाया मैं। वही मैं वो ब्रेक में ही था लास्ट टाइम, मेरा भी ब्रेक हो गया तभी से, वो आपका भी उसके पहले से आपका एक्चुअली ब्रेक है, तो थोड़ा कवर अप कर लो अभी आप। यस मैम, मैं अभी करता हूँ। यस। ललन, कितने करोगे वो चाहिए मुझे। इट शुड बी मेजरेबल। वे कोई भी नहीं बोलेगा, तो मैं श्योर आप भी यस नहीं, मुझे कितने करोगे वो चाहिए। मैडम कम से कम 2 करूंगा मैडम। ओके, वेरी गुड। तो 2 करने। ललन, आप कितना करोगे। 2, ग्रेट। और ये ऐसे ही कमिटमेंट रखो। और ये मार्केटिंग फनल और ऑलरेडी जो फॉर्मूला चैट बॉक्स में टाइप किए थे सबको पता ही है, तो क्यूरियोसिटी
तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि क्रिएट 5, अभी मुझे अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस क्रिएट करनी है ना, तो वहां पे क्यूरियोसिटी जनरेटिंग हेडलाइंस, अभी हेडलाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डेवलप तुझे कैप्टिव एडवर्टाइजमेंट हाईलाइटिंग द यूनिक बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे है ना, फॉर दिस पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो क्रिएट 10 headlines for below topic which will generate curiosity and lead to engagement. लिखते बैठो, बात करते बैठो चैट जीपीटी के साथ, आपकी सारी जिंदगी आसान है। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये देखो रिटायरमेंट प्लानिंग योर की टू फाइनेंस, सिक्योर योर फ्यूचर, डिस्कवर द प्रूवन फॉर्मूला, रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायर इन स्टाइल बहुत ही अच्छा है, रिटायर इन स्टाइल, योर जर्नी टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डोंट सेटल फॉर ऑर्डिनरी, इजंट इट ग्रेट, और बोलोगे और करके देगा वो। तो ये हेल्प लेके, ये इसको गाइड करके कि बाबा मुझे क्यूरियोसिटी वाला दे दो, मुझे ये दे दो, ये तो बता सकते हो। अभी बोलती हूँ गिव सम सजेशंस फॉर विजुअली अपीलिंग ग्राफिक्स फॉर अबाउ कॉन्सेप्ट। ये और डीपली हम लोग आगे के सेशन से सीखने वाले हैं। देखो लाइफस्टाइल इमेजिनरी, इसने इमेजिन भी करके दे दिया, आइडिया भी दे दिया। अभी आप क्या करोगे, सिर्फ डिजाइन तो करोगे, खाओगे एटलीस्ट, यू शुड डाइजेस्ट एवरीथिंग, ओके। इतनी करने में तो हमारी जिंदगी बहुत ही बेकार थी और हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर सही तरीके का नॉलेज है, सही तरीके का यूटिलाइजेशन करोगे, देन चैट जीपीटी इज योर very intelligent assistant. Are you understanding? And you should make full utilization of it. So अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा सब लोगों का कि आराम से ही कर सकते हो, बस एक्शन जो लेनी है वो एक्शन हमें ही लेनी है। Yes. Yes. So it is very very easy. अभी हमें एक्शन लेनी चाहिए, बहुत टाइम हमारा सेव हो रहा है। बिलीव मी, पहले बहुत दिक्कत होती थी ये सारा और नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बिजी है शेड्यूल इतना। चैट जीपीटी के साथ 2 घंटा जो आपको प्रैक्टिस को मिले, उतना भी बैठ के सारा अच्छे से काम करते हो, फोकस काम करते हो, यू विल ड्राइव टुवर्ड्स द रिजल्ट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, so anything else, any questions, feel free to ask, otherwise we will conclude the session. That's it for today's session. डिटेल्ड असाइनमेंट का मैं डाल दूंगी और इसके क्विजेस भी स्वरा अपलोड कर देगी, फिर वो भी सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन थर्सडे। एनीथिंग एल्स मैम वांट टू आस्क? मैम मैंने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल किया मैम, जो आपने बताया, बट ये यूज नहीं हो रहा है। इसमें दिखा रहा है ये बार बार लॉगिन के लिए बोल रहा है, लॉगिन तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अभी अगर ये मीनू प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आपको कल स्वरा के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी टेक्निकली क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये सिंपल वैसे ही प्रोसेस होता है। तो आप चैट जीपीटी क्लोज करके वापस एक बार चालू करो, और वो एक्सटेंशन है क्या यहाँ पे देखो, ये टैब में AIPRM। यहाँ पे है मैम, दिखा रहा है। हाँ, तो बस आपको चैट जीपीटी में जाना है और ये एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे एक विंडो आ जाएगा, कंटिन्यू करो और लिंक विद चैट जीपीटी AI करो, तो नया चैट जीपीटी का AI खुल जाएगा।
ये बोलता है मैम, could not send message to extension. Please make sure the AIPRM for chat GPT extension is installed or enabled. हाँ, तो वो तो वही आपका इसको enable- अनेबल मतलब वहां से डबल क्लिक करोगे तो हो गया। उधर अगर है तो आप ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली क्लिक करोगे और चैट जीपीटी करोगे और लिंक करोगे तो हो जाएगा। नहीं तो एक बार सुबह आप कनेक्ट करो स्वरा के साथ, तो फिर बेटर वो करके दे देगी आपको, दिखा देगी। सर स्क्रीनशॉट भेजिए ना मुझे जरा। स्क्रीनशॉट देता हूँ मैम। ग्रुप में डाल दो आपके, तो स्वरा देख लेगी। ठीक है मैम। एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू आस्क? Ma'am, I'll call you tomorrow. Okay. And wishing you very, very happy Guru Purnima. Yeah, thank you so much It's a pleasure everyone. to have you as a Guru with us. Yeah, thank you so much. So सब लोग बस असाइनमेंट ma'am. करते रहो, मेरी Happy- दक्षिणा दिया happy करो Guru टाइम पे। Assignment is my dakshina, so make sure you people give it to me. Absolutely. So that's great, and उतने अच्छे डेडिकेटेड स्टूडेंट मुझे मिले हैं, so I am very happy about it. Thank you very much, ma'am. Yeah. So I'll call you tomorrow. Yes, sure. Yes, Chaya madam. यस मैडम, अगर लास्ट असाइनमेंट के टाइम में जैसे स्वरा ने वीडियो दिया था, वैसा ये एआई के सप्लीमेंट्स के लिए अगर एक वीडियो कॉमनली अगर डाल देंगे तो AIPRM शायद के तो करने में मैंने नहीं, मेरा ये जो भी अपलोड हो जाएगा ना, इसमें मैंने हाँ। दिखी है ना, वो स्टेप फॉलो करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें डिटेल्स पूरा रहेगा क्या? हाँ, ये वीडियो में ही मैंने करके दिखाया ना आपको। क्योंकि लास्ट टाइम का असाइनमेंट आई फॉलो हर वीडियो स्टेप बाय स्टेप, आई पोस्ट देन आई डू, आई पोस्ट देन आई डू, नहीं, so I can do it easily. I have done this assignment, survey assignment. हाँ बराबर है। तो छाया मैडम, ये जो वीडियो है ना, इसमें सिंपली वो AIPRM का टूल जहाँ पे बोला है ना, वहाँ पे बस वो 3-4 एक्शंस है, हाँ, वही करने बहुत इजी है। ये 1 मिनट का ही काम है। हाँ, वो तो है मैडम। उसको एक्सेस करने को ही पहले टाइम लगता, पहले मुझे वो जीपीटी आपको के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, बाद में टेक्निकली आपको, हाँ टेक्निकली आपको थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। हाँ, यस Yes. मैडम, ओके, थैंक यू। Okay, yes. Anything else? Yeah, thank you everyone. So anything else anyone want to ask? Yes, I think कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और सबको काफी कुछ समझ में आ गया है। सब लोग रिलैक्स भी है चैट जीपीटी की वजह से, सो वो भी हमारा एक गुरु बन गया है। सो दैट्स ग्रेट थिंग। सो गुड नाइट एवरीवन, and Good night, ma'am. yeah, we will conclude the session. Thank you so much everyone. Good night.